I would request other participant to please keep on mute because we are getting a disturbance from their side. So I would request participant to please keep on mute. I would like with the session. We have Mr. Ganesh Ram sir, MD CEO of MF Utility, Mr. Vikram Sharma, who will be taking through the entire session of MFU Box KYC. I have also with my other colleagues who are taking care of the respective zone. Anuradha, she has East and South. We have Rajaram also, Lima Thomas, who is a part of she's a part of Kerala. Vikram Sharma himself take care of the western side. Okay, and myself Manish Dangra, I'm heading north and west. So the session would be, it will be introduced by Ganesh sir, then the session will be conducted by Vikram Sharma of the MFU KYC, what we have, the product what we have launched, and it will be followed by the answer session. So I would request Ganesh sir to start to start the session. Yeah, Manish, thank you. Gautam da, धन्यवाद. I think Gautam da have been following up with me for a long time, but इतना सारा KYC changes, process changes हो रहा है. हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंट आना चाहिए बात करने का इतना बड़ा फोरम पे. तो हम लोग अभी ने गौतम दा बोला एवरीथिंग पता चल जाएगा करके, ऐसे नहीं है. कितना हमको पता है हम बोल सकते हैं, ठीक है. अगर सब कुछ पता चल गया तो भगवान बन जाता है. आई डोंट थिंक विल एवर बी अ भगवान, at least in KYC. Yeah, so first of all, good evening, everyone. I think the numbers are increasing slowly. So, everyone is a distributor, right? In this. Yes. All are distributor. Okay. So, in Hindi and English will do. Hindi and English. Okay. तो अभी गौतम ने बोला बहुत क्रिटिकल डे है, ठीक है. मतलब एवरीडे म्यूचुअल फंड के लिए क्रिटिकल डे बन गया, ठीक है. तो ऐसे नहीं एक दिन क्रिटिकल है, बट बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इतना सारा चेंजेस आ रहा है, वो तो म्यूचुअल फंड के लिए तो इट्स अनदर डे है. तो एक प्रोडक्ट है तब से इतना चेंजेस होता रहता है, बट स्टिल वी आर सर्वाइविंग, वी आर डूइंग इट. द मोस्ट अडेप्टेबल प्रोडक्ट आई थिंक इन द कंट्री, फाइनेंशियल प्रोडक्ट में आई थिंक MF is one. So, and some of these regulation changes and all are driven by regulator. There is some reason behind it. So, I think we should find a way to kind of get this done. तो इसके लिए ये मतलब ये इतना इश्यूज आएगा करके पता नहीं है, बट समवेयर 6 months बिफोर हम लोग एक लॉन्च किया. मैं आपको तो एक स्टोरी, थोड़ा सा स्टोरी बना रहा हूँ. मतलब एक्सेस म्यूचुअल फंड के साथ मिस्टर राघव आएंगे थे. तो हम लोग एक ऐसे कुछ इवेंट में मिले थे. राघव बोल रहा था, राघव अच्छा दोस्त है, राघव बोल रहा था गणेश इतना सारा इश्यूज हैं KYC में, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कर नहीं पाते हैं, ड्रॉप हो जाता है. हम लोग ऐसे अचानक चाय पी रहे थे, अचानक आइडिया आया अगर डिस्ट्रीब्यूटर एनेबल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर एनेबल्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, वही इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटर एनेबल्ड KYC. ऐसे आइडिया आया, हम स्टार्ट किए. दिस वाज समवेयर इन February 2023. 6 महीने लगा हमको. September 1st को हम लोग ये KYC मॉड्यूल लॉन्च किया, विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडस्ट्री. There is no module today available where you can do KYC for your client, basically. ठीक है. So it's all are based है, completely compliant है, and we are connected with all the AMCs. तो आपने डॉक्यूमेंट्स पूरा और डिटेल्स कस्टमर का लेके आप पूरा अपडेट कर दीजिए. 95% of the work will be done by distributor and 5% of work will be done by the investor, be it new KYC or re-KYC or modification. ठीक है. So हम लोग लॉन्च किया. अभी तक close to 5,300 plus distributors यूज कर रहा है. Every day around 3,000 to 3,500 KYCs हो रहा है. ठीक है. तो and it's a paid, MFU बिल्कुल फ्री है, बट दिस इज अ पेड मॉडल, ठीक है, विच माय टीम विल टेल यू. ईयरली सब्सक्रिप्शन है, अनलिमिटेड KYC है, बट एक बार आप ये सब्सक्राइब कर लिया देन MFU लॉगिन के अंदर आपको एनेबल करके दे देंगे. ऐसे ही है. तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हमारा विक्रम और मनीष डांगरा और अनु ने एक प्रेजेंटेशन रखी है, उसको देखिए. मोस्ट ऑफ योर करंट KYC प्रॉब्लम इंक्लूडिंग NRI शुड गेट सॉल्व. ठीक है. But there are some issues which are different, which we are also now, KRA is all making some changes, RTAs are making changes, वो changes होता रहेंगे.
But I can assure you that 90% of your KYC problems today, be it a new KYC or re-KYC modification, this module will be able to get you. The other thing is, Abhi, I think all the AMCs ne acha kaam kiya. They also enable this modification re-KYC in their website. But most of the AMCs have only connected to one KRA. तो अगर आपने AMC एक AMC यूज कर रहे हैं, अगर वो CVL KRA के साथ connected है, only you can make changes for those KRA KYCs where you have done through CVL. ठीक है. But हमारा क्या है, MFU KYC module is connected with the all the KRAs. So irrespective of wherever you have done your KYC or your investor has done the KYC, if you want to do a new KYC or re-KYC or modification, you can do very, very convenient. Let my team explain. It's a separate module. You can see the status. You can download it. सब कुछ कर सकते हैं. And we are ready to even do a demo or separate session for ICAA. So I will now hand it over to Vikram and Manu to take it forward. If there are any questions, please let us know. But please take subscribe to this model and then do KYC fatak se. So instead of we telling boss KYC mushkil ho gaya, let us kind of ensure that KYC becomes mature, easier, and effectiveness. Okay. Thanks again. Thanks everyone. Thanks for ICAA and Gautam Da. And I'm handing it over to Vikram and Manish Da. Yeah. Thanks, Ganesh sir, for your for the session to be kick off. I would request Vikram to share the screen and just share the demo on MFU Box KYC, a presentation on MFU Box KYC. Yeah, thank you, Ganesh sir, and thank you, Manish. Thanks to all the people. I would request participant to please be on mute so that Vikram can easily go with the presentation. Yeah, Vikram, please share the screen and start. Can you all see the screen? Yes, Vikram. Yes. Yeah. So as Ganesh said, that this KYC model that we have launched in September 2023, 1st September 2023. Okay. Now as we today have the KYCs, हमारे पास जो आज के डेट में जो KYCs ऑनलाइन जो अवेलेबल हैं, जैसे KYC आधार बेस हो चाहे वीडियो बेस KYCs हो, तो आप लोग एज अ IMD एज अ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, आप लोगों को पता है कि जो अभी फिलहाल मौजूदा जो सिचुएशन है जिसमें आप लोग क्या करते हो कि अपने एंड से आप लोग अपने क्लाइंट को लिंक फॉरवर्ड करते हो इन केस ऑफ वीडियो KYC और आधार बेस्ड KYC, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द वर्क आपके इन्वेस्टर को करना पड़ता है. और आप सबको पता है कि आज की डेट में सर जो इन्वेस्टर है वो अपनी KYC फर्स्ट टाइम इन लाइफ टाइम करता है, और उसके लिए सारे प्रोसेस फॉलो करना वो थोड़ा उसके लिए चैलेंजिंग होता है. और उसमें क्या होता है कि काफी जो KYC जो है वो ड्रॉप आउट हो जाती है और फेल हो जाती है. अब उसमें क्या होता है कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर सर आपके लिए वो स्ट्रगल है, बिकॉज आप उसको बार बार उसको करवाते हैं और बार बार वो फेल हो जाता है. इन्वेस्टर भी ट्राई करता है बट वो कर नहीं पाता है, बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है. तो हमने सोचा कि हमने सोचा कि लेट्स कम अप विद अ सॉल्यूशन वेयर डिस्ट्रीब्यूटर डज द एंटायर जॉब एंड so 20% job has to be done by the investor. So 80% to 90% job distributor करते हैं, 10% job जो है investor करता है. ऐसा कुछ solution है. And there we came out with this KYC module for IMD assisted module. So I'll give you the features कि इसमें क्या features है, क्यों ये unique है industry में, and as a sir said that कि one of its kind that we have come out with. So today the first feature, most important, as I said, it's an IMD driven. It's a completely driven by the distributor and approved by the investors. That is the most important, because no one in the industry today
हैज दिस सोल्यूशन और हैज दिस प्रोविजन दैट कि एक डिस्ट्रीब्यूटर इनिशिएट करेगा और इन्वेस्टर अप्रूव करेगा, जिसमें सारा डेटा एंट्री आप करोगे, डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, आप सिर्फ क्लाइंट को लिंक फॉरवर्ड करते हैं फॉर हिम टू अप्रूव इट। तो वो सबसे इजीएस्ट जॉब आपके लिए होगा, बिकॉज आप डेली केवाईसी करते हैं तो आपको सारा पता है कि केवाईसी प्रोसेस कैसे होता है, और एक इन्वेस्टर को ये सब चीज का पता नहीं होता है। तो इसलिए ये आपके लिए बेटर ईज ऑफ सोल्यूशन है जहां पर आप कर सकते हैं। सेकंड जो है सर, हमने ये जो सर्विस है हमने अपने इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स और एनआरआई, तो आज की डेट में आप अपने आरआई रेसिडेंट इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए आप कर सकते हो, एनआरआई के लिए। जबकि एनआरआई में आज की डेट में सर, अगर मैं आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि एनआरआई का आज की डेट में फिजिकल के अलावा ऑनलाइन में कहीं पर भी केवाईसी अवेलेबल नहीं है, और उसमें भी आपको जियो टैगिंग होता है कि कस्टमर को इंडिया में अवेलेबल होना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डूइंग केवाईसी। बट एमएफयू में आपको ये प्रोविजन, आपको फैसिलिटी है कि आपका इन्वेस्टर कहीं भी अक्रॉस इन द वर्ल्ड है, आप उसकी केवाईसी अपने एमएफयू के पोर्टल से आप कर सकते हैं एंड ही विल अप्रूव इट। तो ये फैसिलिटी हमने ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे दे रखी है, जो अगेन इट्स वन ऑफ द काइंड, एंड ये इंडस्ट्री में किसी के पास अभी नहीं है। सेकेंड, थर्ड पोजिशन है मल्टीपल पीओए, मल्टीपल प्रूफ ऑफ एड्रेस। ऑफकोर्स अभी जो नया गाइडलाइंस आया है वहां पर आधार इज ऑलवेज रिकमेंडेबल एंड मैंडेटरी टू बी डन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट also SEBI allows that कि other POA like the passport, voter ID, driving license and all that, तो ये सारे POA भी आप अपलोड कर सकते हो। ये हमने टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोवाइड कर रखे हैं जो आप केवाईसी क्रिएट करने में आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ जो हमारा फीचर है, दिस इज बेसिकली रियल टाइम डिस्प्ले ऑफ केवाईसी स्टेटस फॉर IMD। तो यहाँ पर कैसे कि आज की डेट में सर आप कोई भी केवाईसी करते हो, ऑनलाइन कीजिए चाहे आप फिजिकल कीजिए, आपका जब केवाईसी प्रोसेस होता है वो T+3 में या T+5 में प्रोसेस होता है, तब आपको पता चलता है कि उसका स्टेटस क्या है, वो प्रोसेस हो गया है, होल्ड हो गया है, रिजेक्ट हो गया है, जो भी सिनेरियो है। बट हमारे सिस्टम में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपको जब आपने ये केवाईसी उसका प्रोसेस किया अपने इन्वेस्टर का, तब से आप उसका रियल टाइम स्टेटस देख पाओगे फ्रॉम द टाइम अंडर प्रोसेस टिल द टाइम इट गॉट वैलिडेटेड, तब तक का पूरा स्टेटस आप अपने सिस्टम में देख पाते हो ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो ये हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लॉगिन में हमने ये फैसिलिटी दे रखी है, हु इज गोइंग टू यूज आवर एमएफयू मॉडल सिस्टम। फिफ्थ, वी टॉक अबाउट द end-to-end digital modification and resubmission. When I say modification resubmission, देखिए आज की डेट में जो आप लोग केवाईसी करते हैं उसमें क्या है कि आपने केवाईसी की, कस्टमर को T+5 में पता चला वो रिजेक्ट हो गया है, आप दोबारा उसका जाके सारा प्रोसेस करते हो, क्योंकि आपको एक बार रिजेक्ट हो गया या होल्ड हो गया तो पूरा प्रोसेस आपको वापस फॉलो करना पड़ता है। बट एमएफयू में आपको ये फैसिलिटी है कि जब आप अपने नए कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं, जब उसकी केवाईसी तो उसमें आपने जब डेटा एंट्री करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करके क्लाइंट को लिंक भेजा फॉर हिम टू अप्रूव इट, क्लाइंट को एक केवाईसी फॉर्म के तौर पे उसमें दिखता है, वहां पर पूरा फॉर्म और जो डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किया वो सारा दिखता है, और वो वहां पर चेक कर सकता है उसके डेटाज और उसके डॉक्यूमेंट्स। अगर उसे लगता है कुछ गलत है, डेटा एंट्री में कुछ गलत है या डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत है, वो उसको वहां रिजेक्ट करके अपना रीजन देगा कि मैं इस वजह से रिजेक्ट कर रहा हूं, और वो इमीडिएटली आपके सिस्टम में नोटिफाइड हो जाता है, और आप उसको सिर्फ उतना ही पोर्शन को आपको चेंज करना है जो उसने रेक्टिफाई करने के लिए कहा है, क्योंकि आपके पास पूरा डेटा एंट्री किया हुआ है, आपको सिर्फ वही चेंजेस करना है जो इन्वेस्टर ने आपको नोटिफाई किया, और वो आपने नोटिफाई करके आप दोबारा क्लाइंट को लिंक फॉरवर्ड करते हैं और वो अप्रूव करता है। अब इससे क्या होता है कि आपने केआरए में पुश करने से पहले ही कुछ भी जो गलतियां हैं जो भी हैं वो आप अपने एंड पे उसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो आपका चांसेस ऑफ रिजेक्शन एट द केआरए लेवल इज वेरी नेग्लिजिबल unless and until there is some valid reason by the KRA for rejection. Otherwise आपका प्रोसेस जो है KYC will be completely through and your KYC will be done successfully process. तो ये हमने फैसिलिटी जो हमारे, इवन आप मॉडिफिकेशन करोगे तो उसमें भी हमने ये दे रखा है कि आप जो पर्टिकुलर चीज आप, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके अगर रजिस्टरिंग क्लाइंट है
तो आपको सिर्फ वो पर्टिकुलर पोर्शन आपको मॉडिफाई करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड क्लाइंट को भेजना है. सो ऑल दिस प्रोसेस हैव बीन गिवन एट MFU सो दैट योर नेग्लिजेंसी इन टर्म्स ऑफ जो आपका रिजेक्शन चांसेस होता है वो टोटली जीरो हो जाए. Okay, so that we provide over here in modification and resubmission at our end. And of course, this saves a lot of time of our distributors because वापस दोबारा प्रोसेस करना, क्लाइंट के पास जाना, वापस साइन लेना, आपका टाइम, बिकॉज योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. तो आपके लिए आपका समय, आपका टाइम, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना, वापस भी करना, इसके लिए आपको काफी दिक्कतों का ये सामना करना पड़ता है. तो ये सारी चीजें आपकी काफी सेव होगी इस मामले में और आप अपने कस्टमर्स को प्रॉपरली केवाईसी उनका प्रॉपर ऑनबोर्ड कर पाओगे. दैट इज व्हाट वी ऑफर. एंड सेकंड, द लास्ट, वी हैव ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ. सो हियर वी आर ऑफरिंग यू दैट कि ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, प्लस अगर आपके इन्वेस्टर को अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो वो ऑफलाइन भी प्रोसेस अपलोड कर सकता है. तो ऑल दिस फैसिलिटीज आर बीन गिवन फ्रॉम आवर एंड in our KYC model. So these are all the features which are unique from MFU to to all our distributors that we are giving this facility from our end. And that's the reason it's one of the as sir said, it's one of the industry, one of the completely unique model that has been created from our end. Now I'll take you to the flow chart. Like, what are the job today an intermediary or a distributor that does it? What is the job that the client does it? And what is the job at MFU? So मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट दिखाऊंगा कि ये केवाईसी कैसे प्रोसेस होता है, चाहे वो नया केवाईसी हो, चाहे आपके मॉडिफिकेशन का हो. ओके, सो द मोमेंट यू लॉग इन टू योर केवाईसी मॉड्यूल, आपको हमारे यहाँ पर जैसे आप रजिस्टर होते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप रजिस्टर हैं तो आपको ऑलरेडी हमारे सिस्टम में आप रजिस्टर्ड हैं और उसी में हम आपको जो है MFU KYC बॉक्स का भी लॉगिन देते हैं. जब आप KYC बॉक्स में लॉगिन करते हैं तो आप पहले आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप चेक करते हैं IMD वैलिडेट्स फॉर KYC बेस्ड ऑन. तो आप अपने कस्टमर का पैन नंबर डालते हैं और उसको KYC वैलिडेट है कि नहीं है आप चेक करते हैं, वो बंदा KYC वैलिड है कि नहीं है. बेस्ड ऑन दैट रिस्पॉन्स आपको पता चलता है कि आपको उसका नया KYC करना है या उसका आपको मॉडिफिकेशन करना है. ओके, अगर आपको लगता है कि उसका मॉडिफिकेशन करना है तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, मॉडिफाई द KYC एंड IMD विल सॉलिसिट द KYC. तो मॉडिफाई के आप क्लिक करते हैं एंड यू गो टू द मॉडिफिकेशन पेज. सो बोलिए अगर वो नया, तो आई फर्स्ट टेक द मॉडिफिकेशन देन आई टेक द न्यू KYC. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका मॉडिफिकेशन है तो आपको क्लाइंट का ईमेल करना है या मोबाइल करना है या अदर चेंजेस आपको करने हैं इन दी मॉडिफिकेशन, तो आप अकॉर्डिंगली चूज करते हैं. वी हैव गिवन द टैब ओवर देयर, चेंज ईमेल मोबाइल और चेंज दी अदर इंफॉर्मेशन. तो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं. द मोमेंट यू सेलेक्ट अमंग ऑफ देम, आउट ऑफ आइदर ऑफ द टू ऑफ देम, आप फिर अपलोड करते हैं पैन एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर करंट एंड परमानेंट एड्रेस, वो आप अपलोड करते हैं. एंड अपलोड करने के बाद जो है वो आप अपने एंड पे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को प्रीव्यू कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एंड देन यू सेंड अ मेल टू योर कस्टमर फॉर ई-साइन. ये हो गया आपकी मॉडिफिकेशन का पार्ट. तो सिमिलरली आपने वैलिडेट किया, आपने मॉडिफिकेशन सेलेक्ट किया, आपने ईमेल मोबाइल जो भी करना या अदर डेटा चेंज करना आपने किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और आपने प्रीव्यू करके ईमेल भेज दिया अपने क्लाइंट को. दिस इज फॉर मॉडिफिकेशन. सिमिलरली अगर आप कहते हैं ये न्यू KYC करना है, अगर न्यू KYC करना है तो आप जो है उसका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हो, डॉक्यूमेंट्स और डेटा कलेक्ट करते हो एंड यू डज द IPV एंड यू सबमिट द डॉक्यूमेंट. thereafter you upload the documents like PAN and the proof of address, and once you upload the documents, thereafter again you preview the document and send the mail to the customer. So यहां तक का आपका जॉब है. ठीक है, so you are doing the entire stuff. आपने पूरा डेटा एंट्री किया, आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया और आप अपने क्लाइंट को भेज रहे हैं. Now what is the job of a investor? Investor will access the mail that has been sent by you. He will click on the link and he will enter his PAN number to proceed and authenticate. Okay. Thereafter, customer will upload his wet signature. वो अपना signature एक white paper पे
अपना सिग्नेचर स्कैन इमेज रख सकता है एज व्हाट्सएप और एज एन इमेज स्कैन इमेज. द मोमेंट ही विल गिवन द ऑप्शन, आइदर ही कैन साइन ऑन द पैड और ही कैन अपलोड द वेट सिग्नेचर. तो ये वो इन्वेस्टर करता है अपने एंड से. उसके बाद केवाईसी डेटा, उसको जैसे मैंने आपको बताया, he will be able to check the entire KYC data form whether all the data and the documents are correct. If he find everything, he will say KYCs are correct and then he will proceed for e-sign. तो अगर उसे लगता है everything documents okay, he will proceed for e-sign. Via Aadhaar OTP, he will do the e-sign and thereafter he submits. Once he submits, he can also download a customer copy for his record. तो इन्वेस्टर अपने एंड पे भी उसको पूरा कस्टमर कॉपी, पूरा केवाईसी का फॉर्म विद डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग उसको मिलेगा, ताकि ही कैन keep as a customer copy at his end. Now, what is the job at MFU? Once the entire job is done by the distributor and the client, thereafter MFU will push this data via API to the KRA. Okay, and KRA will thereafter process this document and update the entire thing to the MFU system on the status of the application. Once the status of the application, like we find that it's been successfully processed for all the cases, it will be intimated. And if for unsuccessful cases, applications, MFU will send a remediation update to the IMD. तो अगर आपके यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कुछ अगर गलत है या प्रॉपरली नहीं है, तो MFU आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस नोटिफिकेशन भेजता है फॉर रेमेडिएशन, और उसके बेसिस पे आप अपने एंड पे उसको पूरा व्यू कर लेते हो. अपने डैशबोर्ड में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है कि मुझे ये चेंजेस करना है. आप वो रेमेडी आप चेंजेस करके आप दोबारा उसका प्रोसेस करते हैं फॉर टू दी इन्वेस्टर फॉर हिज अप्रूवल. तो ये सारा प्रोसेस है एज as a distributor, as a client, as an MFU. This is the entire flow chart that gives you the overall view of how the KYC has been processed overall. Okay. Now I'll take you to the MFU model subscription, USP and subscription. Okay. Now once this has been processed from your end and MFU proceeds to the KRA, okay, the KYC gets approved within 48 hours. Okay. There are three modules available. One is IMD assisted. Second is DIY, that is do it yourself. And third is your re-KYC and modification. There is a subscription amount of rupees 1179 inclusive of GST. So that comes to 999 plus 18% GST. That comes to 1179. It's an annual charge. We charge annually. Post your payment. आपके पेमेंट करने के बाद हम आपको गूगल फॉर्म लिंक शेयर करते हैं, जिसमें आप अपने डिटेल्स को फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद वो डॉक्यूमेंट वो जो है हमें सबमिट करते हैं. अब वहां पर जैसे सबमिट कर दोगे गूगल फॉर्म हमारे पास आ जाएगा एंड वी विल एक्टिवेट योर अकाउंट इन योर MFU सिस्टम विद इन T+5 वर्किंग डेज. ओके. फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन on MFU Box KYC, you can write a mail to MFU Box KYC at mfuindia.in, or you can also call to our landline number, which is exclusively for the MFU Box KYC, which is 6290-6382 and 6383. Now, what are the documents in the Google form that you're going to submit? Because वहां पर कुछ आपको details fill up करने पड़ते हैं, वो details आपसे लिया जाता है, and आपके जो MFU का आपका सिस्टम जो आप यूज करते हैं, तो हमने आपको MFU जब आपने जब MFU में रजिस्टर किया तो हम आपको 3 आईडी देते हैं, यूजर आईडी, 2 सिस्टम एडमिन आईडी और एक बैक ऑफिस आईडी होता है. ठीक है. तो यहाँ पर आपको बैक ऑफिस आईडी देना पड़ता है, बिकॉज आपके बैक ऑफिस आईडी में ये हम उसको एक्टिव करते हैं. और वहां पर जो आपको फॉर्म के साथ गूगल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आप जो पेमेंट करते हैं उसका पेमेंट प्रूफ, अगर आप GST भरते हैं तो आपका GST सर्टिफिकेट एप्लीकेबल, तो वो आप अपलोड करेंगे. आप जब IPV करते हैं, जब आप कोई भी KYC करते हैं तो आप लोग IPV करते हैं तो आप अपना सील एंड स्टैंप लगाते हैं. तो आपका जो सील एंड स्टैंप है वो एक व्हाइट पेपर पे आप उसका स्कैन इमेज क्रिएट कर सकते हो
और वो आपको गूगल फॉर्म में अपलोड करना पड़ता है। आपको सर्टिफिकेट रहेगा आपका, सॉरी RIA का सर्टिफिकेट, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा तो आपका ARN UN कार्ड होगा, वो आपको अपलोड करना पड़ता है। सिग्नेचर इमेज होता है सर, तो आपका जो आपके इंडिविजुअल नाम पे अगर आपका ARN है तो आप ही के नाम पे UN है, तो आपका UN का जो आपका सिग्नेचर है वो आपको एक व्हाइट पेपर पे आपको स्कैन इमेज उसका बनाना पड़ेगा और वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं फॉर योर गूगल फॉर्म में सबमिशन के टाइम पे। ओके, सो आज की डेट में सर जो KYC है, जो अभी फिलहाल जो सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ KYC रिजेक्ट्स होते हैं, सॉरी KYC रजिस्टर्ड सिनेरियो, KYC वैलिडेटेड सिनेरियो, तो ये ऑलरेडी ये सब सारे क्या है, तो जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देता हूँ। लाइक KYC रजिस्टर्ड जो है उसमें थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूँ। KYC रजिस्टर्ड जो आपने डॉक्यूमेंट जो भी आपने एट द टाइम आपने जब KYC आपने इन्वेस्टर का जब किया था तो आपने अदर डॉक्यूमेंट्स आपने दिए थे सारे, तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे अपार्ट फ्रॉम आधार मास्क, अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक पासपोर्ट, ड्राइविंग, वोटर, जो भी आपने दिए, ये सारे आपने दिए हैं और आपने पैन आधार लिंक किया, ईमेल मोबाइल वैलिडेशन किया, सब किया। तो आज की डेट में आपको क्या है, आप एग्जिस्टिंग फोलियोज में आप इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं, नए फोलियोज में आप नहीं कर पाते। अब अगर नए फोलियो में आपको करना है तो आपको KYC करना पड़ता है, और फॉर दैट KYC आज की डेट में आप कहीं पर भी प्रॉपर ये नहीं है, बट यस MFU is going to provide you that KYC and modification in our system so that you can do those KYCs and get those KYC registered to KYC validated. सेकेंड, आपका KYC वैलिडेटेड, अगर किसका KYC वैलिडेटेड, बिकॉज जिन्होंने अपने पैन आधार से ही अपना कैन ऊपर KYC किया था, तो उनके लिए they can do in their existing AMCs folios as well as new folios also can be done, so they don't have any problem since their KYC is completely validated. And third is your KYC on a hold. KYC on a hold की सिनेरियो जहां पर आपका ईमेल मोबाइल अगर वैलिडेट नहीं किया हुआ है, वेरीफाई नहीं किया हुआ है, पैन आधार सीडिंग नहीं की हुई है, तो इस सिनेरियो में आपके जो है क्या जो आपका KYC है वो ऑन होल्ड चला जाता है, और उसी बेसिस पे जो है आप उसके अंदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आज की डेट में फिलहाल इशू है, एंड फॉर दैट MFU KYC is the better solution that you have it, that you can have your new customer on board through MFU KYC module, and thereafter also can do modification through the MFU KYC module. So that ends my presentation. Now we are there for the Q&A session. Yeah, I would request distributors, so if you have any question, you you can please raise your hands. My colleague Lima will be also sharing you the payment detail and the Google form in the chat box. Meanwhile, अगर किसी भी एडवाइजर को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं एक एक करके अनम्यूट करने को जब कहूंगा तो आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। और मीनवाइल मेरी कलीग लीमा आपको MFU बॉक्स KYC सब्सक्रिप्शन का पेमेंट डिटेल और गूगल फॉर्म का लिंक आपको चैट बॉक्स में शेयर करेगी। तो किसी भी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चंस हैं प्लीज अनम्यूट कीजिए या क्वेश्चन चैट बॉक्स में डालिए। यस सर, किसी भी पार्टिसिपेंट को अगर क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। सर किसी को क्वेश्चन है प्लीज? हाँ गौतम सर, Yes. अगर आपके किसी पार्टनर्स को या किसी पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन है तो प्लीज उन्हें पूछने के लिए बोलिए। और मीनवाइल मेरे कलीग ने डिटेल चैट बॉक्स में शेयर किया। हेलो। हाँ यस अशोक सर। हाँ, मैं पूछ रहा था जो अभी तक MFU से एसोसिएट ही नहीं है, हाँ तो वो किस तरह से एसोसिएट होंगे, और क्या एसोसिएट होने के समय जो पैसा वगैरह लगता है और ये KYC का अलग से लगेगा क्या, बता दीजिए।
जहां तक सर एमएफ यूटिलिटी का सवाल है, एमएफ जैसे कि आप जानते हैं ये सेबी एमफी इनिशिएटेड बॉडी है और सभी एएमसीज इसकी स्टेक होल्डर है, तो पर से एमएफयू यूज करने का कोई चार्जेस नहीं है। यस, क्योंकि हमने लॉगिन एमएफयू के लॉगिन के अंदर इनबिल्ड किया है, तो आपको पहले एमएफयू में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जो आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो सकते हो। आप एमएफयू इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे mfuindia.com, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन में एनपलमेंट में जाएंगे, जिसका लिंक मेरी कलीग आपको चैट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक भी शेयर कर देगी। आपको एमएफयू में सिर्फ रजिस्टर्ड होना है, जो ऑलरेडी लिंक शेयर कर आपको चैट बॉक्स में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, जो ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है आपको। आपको एमएफयू में रजिस्टर्ड होना है और आपको जो बीओ आईडी मिला है वो आप जब एमएफयू बॉक्स केवाईसी सब्सक्राइब करोगे उसमें आपको उस आईडी को यूज करना है, क्योंकि उस आईडी के अंदर इसे एक्टिवेट होगा। और यस, एमएफयू बॉक्स केवाईसी ये एक पेड वर्जन है, तो इसका जो जैसे विक्रम शर्मा ने सेशन में कहा था आपको 1179 ये ईयरली चार्जेस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ केवाईसीज। आप यहाँ पे कितने भी केवाईसीज करो, केवाईसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर। अच्छा, ओके। तो ये जो मेरे को एमएफयू यूटिलिटी में जाके वो रजिस्ट्रेशन करना है, वो है mfuindia.com में जाके करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर। लिंक मेरे कलीग लीमा ने आपको जो चैट बॉक्स में शेयर कर लिया है सर, जस्ट शेयर कर रही है सर। ओके आप वो लिंक ओपन करोगे तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन का आपको वो फ्लो मिल जाएगा सर। ओके, मैं देख लेता हूँ कौन सा है। यस सर। ये हेलो प्लीज चेक योर यूट्यूब, कौन सा है वो लिंक, कौन सा है? सर, लिंक देखो जस्ट शेयर किया आपको, एमएफयू ब्रैकेट में रजिस्ट्रेशन का लिंक मिला सर आपको? नहीं, अभी तक नहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ पे ये? चैट बॉक्स में शेयर किया है सर। सर चैट बॉक्स में अभी डाला है। अच्छा अच्छा, एमएफयू ब्रैकेट में CU। हाँ यस सर, Yes, वही है yes, वही sir, है yes, सर, sir. वही है सर। Correct. ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा एक क्वेरी है। हाँ सर। जैसे कि हमने कुछ केवाईसी, हमने न्यू केवाईसी बनाया था एमएफपी की साइड से, तो हाँ केवाईसी सर है ना वैलिडेट नहीं आ रहा है, सारा रजिस्ट्रेशन आ रहा है, जबकि आधार के थ्रू हुआ था वो। सर इसमें कैसा होता है कि पहले जब वैलिडेशन का इशू के पहले आधार कार्ड का क्यूआर कोड का कुछ वैल्यू ये नहीं था, वैलिडिटी का इशू नहीं था सर। ओके अभी जब वैलिडिटी जो केवाईसी वैलिडेशन होता है वो क्यूआर कोड के बेस में होता है। तो जब भी ओके आप एक आधार कार्ड डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हो, तो ये क्यूआर कोड अगर क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो आपका केवाईसी अप्रूव में जाएगा बट रजिस्टर्ड में ही रखेंगे। तो वो वैलिड होने के लिए इवन क्यूआर कोड आल्सो हैज टू बी क्लियर। ओके तो वैसे केसेस में आप हम जो सजेस्ट करेंगे अपना UIDAI वेबसाइट है, उड़ाई वेबसाइट में से जो आधार कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए, मास्ड आधार कार्ड, ओके वही आप उसको अपलोड कर लीजिए एज ए डॉक्यूमेंट आधार कार्ड का। तो उसमें ओके। क्या होता है कि क्लैरिटी और अच्छा बढ़ता है उसमें। और मैम और एक क्वेरी था, जैसे मॉडिफिकेशन आपने दिया है कि एनआरआई के केस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, ठीक। या ओके, थैंक यू मैम। किसी और पार्टिसिपेंट को क्वेश्चन है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए प्लीज। सर एक बार यदि हमने रजिस्टर कर लिया और फ्यूचर में कराया केम्स की साइड से केवाईसी में कोई चेंज आता है, तो लाइफ टाइम के लिए ये एक्सेस रहेगा ना? सर केवाईसी का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है ये चार्जेस ईयरली बेसिस पे है सर। ईयरली बेसिस सर? हाँ, ये 1179 ईयरली बेसिस पे है सर। ओके सर। या नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Sir, this is Vivek Joshi हाँ and हमारा Vivek sir। क्वेश्चन NRI को लेकर है। NRI है किसका KYC रजिस्टर्ड दिखा रहा है पर वैलिडेटेड नहीं है, तो उसे अपने MFU बॉक्स से वैलिडेट कर सकते हैं क्या? ओके सर, देर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट। एक है आप मॉडिफिकेशन थ्रू कर सकते हैं, यू आर डूइंग री केवाईसी फॉर दैट। ओके, द अदर वे इज इन CVL KRA इटसेल्फ आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेयर यू सर्च फॉर केवाईसी इंक्वायरी, उसके बगल में आप देखोगे केवाईसी वैलिडेशन। ओके, तो वहां आप उनका पैन नंबर डाल के नीचे आप देखोगे प्रोसीड विद आधार वैलिडेशन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको। ओके। अदरवाइज NRI है उसका तो आधार नहीं होगा, तो अदर ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हो सकेगा वो? नो सर, सर करंटली एज पर ये CVL की रिक्वायरमेंट है, आधार की रिक्वायरमेंट सर, MFU स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है सर। ओके ये ओके, करंटली गॉट योर CVL पॉइंट, की रिक्वायरमेंट है। गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। Yes. ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अरे सर कहाँ पर पेमेंट करना है? अनूप जी आपकी आवाज नहीं आई बराबर, आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं?
बोलते कहाँ से पेमेंट करना है? कहाँ से क्या करना है सर? पेमेंट 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 सर, आपको पेमेंट आपको चैट बॉक्स में लिंक शेयर किया गया हाँ है पेमेंट डिटेल का, और वो पेमेंट हाँ करने के बाद गूगल फॉर्म फिल करना है। तो गूगल मनीष ये फॉर्म, बोलो, अच्छा चैट बॉक्स होता है ये जूम में, ये मीटिंग में चैट बॉक्स है उसी में, वो बोलो। हाँ अच्छा सर, ये जूम मीटिंग अच्छा, चल रही है, उसका चैट बॉक्स आप हाँ, चेक उसका कीजिए एक सर। चैट बॉक्स है, वो देखिए आप। उसमें हो हाँ जाएगा ना? हाँ सर। हाँ हाँ, आप एंड बाद में हम लोग ग्रुप में डाल देंगे, कोई ये सर प्रॉब्लम नहीं गौतम है। सर, अब ये सेशन होने के बाद आपको पूरा डिटेल आपको भी शेयर किया जाएगा, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने जितने भी पार्टिसिपेंट है जो इस सेशन में आए हैं, और हो सकता है जो कुछ बिजी मीटिंग के कारण ना आ पाए हो, उनको भी प्लीज शेयर कर लीजिए। हाँ, वो कर देंगे। या थैंक्स सर। नेक्स्ट सर क्वेश्चन प्लीज। सर यूट्यूब में दे दीजिएगा, अच्छा होगा वो। बिल्कुल सर। हाँ सर सर यूट्यूब हमने वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका हमने भी लिंक आपको शेयर करते हैं। हमने यूट्यूब वीडियो लिंक भी शेयर किया है सर, तो आप वो भी चेक अच्छा, कर सकते हो, चैट बॉक्स में मेंशन है। ना अभी तो लिया नहीं केव से, तो हम पेमेंट करके ले लेंगे वो। ठीक है, डन सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट ओके, क्वेश्चन। थैंक यू सर। किसी भी पार्टिसिपेंट को कुछ और ये क्वेश्चन है तो प्लीज जो पूछिए। ई आधार जो है ना बस, वो उसका जो साइज जो होता है वो अपलोड नहीं हो पाता है, तो उसका साइज के लिए आप लोग का पास कुछ है जो साइज, स्पेसिफिक साइज, कितना साइज चाहिए? तो 1 MB तक मिल जाएगा सर, 1 MB तक क्लैरिटी हो जाता है सर, अप टू 1 MB क्लैरिटी इज एक्सेप्टेबल। वो तो पता नहीं चल रहा है ना किसका क्या साइज आता है वो डाउनलोड करने से। सर डाउनलोड करने के बाद राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे तो साइज आ जाएगा सर। साइज आ हाँ जाएगा हाँ, तो सर। उसका रीसाइज करने का कोई आप लोग का पास तरीका है? जो आम आदमी के लिए बोल रहा है, जिसका ओके जानकारी है वो अलग बात सर, है। एक छोटा सा ट्वीक विच आई माई सेल्फ डू इज जस्ट व्हाट्सएप में एक नया फीचर है, मैसेज योरसेल्फ। ठीक है, तो व्हाट्सएप वेब में इफ यू ट्राई टू सेंड इट टू योरसेल्फ एंड डाउनलोड दैट, वो एनीवेज 1 MB के नीचे आ जाता है, एंड दैट आल्सो गिव यू अ क्लियर क्लैरिटी इमेज एज वेल. So you can do that, or we also have many options in Google wherein you can do image compressor. So वो आप गूगल में अगर इमेज कंप्रेसर टाइप करोगे, इफ यू पुट दैट इमेज टू दी फाइल, वो आपको 1 MB के अंदर कंप्रेस करके दे देंगे। नहीं नहीं, आप लोग का पास कोई स्पेसिफिक है तो वो दे दीजिए, हम सबको बांट देंगे, वही बोलना चाहता है। गूगल में तो सब कुछ है, तो गूगल देख के क्या होता है ना, अभी आधार का जो प्रॉब्लम आ गया ना, ये हमारा जो प्रेसिडेंट है उनका थाना से थ्रेट आ गया, आपका कौन कौन बताया इसका करने के लिए कि आप आधार डाउनलोड किया, उसका ओटीपी मांग रहा है, ये नया फ्रॉड चालू हो गया। तो ये आज का दिन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए खतरनाक हो गया। कोई आदमी को अच्छा भला काम करने के लिए भी उनका थाना से फोन आ रहा है। नहीं गौतम दा, क्या होता है ना, व्हेन यू एक्चुअली डाउनलोड द आधार फ्रॉम उडाई साइट, हाँ बेसिकली वो 1 MB के अंदर ही आता है। हाँ अब अपलोड हाँ कर दो, अगर नहीं हो रहा है देन ऑब्वियसली उसको एडिट करके करना है। हाँ, तो वही हमारे पास वही वही पूरी है। नहीं है, बट मोस्टली 1 MB के अंदर ही आ जाता है। अभी अभी जो है ना, हम तो ये आप भी एक बार थोड़ा एमपी और सेबी को बोलना चाहिए कि इन्वेस्टर का पास कोई ऑफिशियली मेल नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है इन्वेस्टर का पास, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर का ये जमींदारी आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि वो लोग का बोला क्यों चाह रहा है, आप क्यों मांग रहा है, हम तो पहले एक बार दे दिया, आप क्यों दोबारा मांग रहा है? तो ये जो क्या है, अभी कुछ किसी का गड़बड़ हो जाएगा, उनका दूसरा कोई डिजिटल फ्रॉड हो जाएगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर का को पकड़ा लेंगे। बट गौतम दा, मेरे को as far I know, even if you look at Mirai AMC का today, हाँ सौरभ भाई का भी है, every AMC is sending emails to the investor saying that boss this change is there wherever there is a KYC verified status है. I think I've been told that all the AMCs are also sending email. तो वो चेक करिए ना, वो एक्चुअली इन्वेस्टर का बस वो ऐसा ईमेल से ज्यादा कुछ नहीं होता है, उनका जो मोबाइल नंबर है, मैसेज करने से कम मैसेज वो मिल रहा है, ईमेल आईडी तो जनरल इन्वेस्टर नहीं देखते हैं। तो ये हमको हम बोला है, हम्म 2-3 एमसी को बताया,
लेकिन वो लोग फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, इन्वेस्टर के पास कोई पता नहीं चल रहा है। ये अभी फ्रॉड चालू हो गया, ये आधार लेके एक चैलेंजिंग आ गया दोबारा। Yeah. So one more clarification required regarding the e-Aadhaar or Mask Aadhaar, which is being downloaded from UIDAI. It is password protected. So whenever we go and upload it through the CVL link, it says to enter the password. Is the same thing required while doing it through MFU box? No, sir. No required for that. You can remove the password and upload it, sir. Okay. Okay, ma'am. Thank you. That's good. That's good. The password is very. That's why threat is coming from the Thana police station for password. यस गौतम सर, जितना सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर सकते हैं वो डेफिनेटली किए हैं यहाँ पे। हाँ। जैसा कि पासवर्ड ना डालना पड़े, वो सब चीजों का टेक केयर किया गया है। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो आपको और मुझे फॉलो करनी होगी, तो अदरवाइज जितना सिंप्लीफिकेशन से बना सकते हैं बना दिए हैं, और जैसे जैसे आप लोग का सजेशन आएगा तो डेफिनेटली उस पर काम करेंगे सर। हाँ, मेन अभी जो है जिसका आप लोग बोलो जिसका अपडेशन करना है तो उसका KYC करने से हो जाएगा। Yes, sir. तो MFU बॉक्स थ्रू कोई किसी का वो अपडेट नहीं है और उसमें अभी वैलिडेट नहीं है तो KYC करने से उसका हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, हुआ sir, हो किया, जाएगा। sir. Yes, sir. ठीक है, किसी और पार्टिसिपेंट को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। Any question? Devashish Goswami, Tamal Kanti Shil, all are requested, please. If we have any question, please. एंड गौतम सर, आपको कुछ YouTube वीडियो का लिंक, पेमेंट डिटेल्स का लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, अपने टीम मेंबर को शेयर कर लीजिए। हाँ, आप डिटेल्स मेरे को दे दीजिए, हम पूरा सबको बिल्कुल डाल देंगे। और एक बार आपके टीम मेंबर से जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करते हैं ना सर MFU बॉक्स KYC के लिए, तो हाँ, उनके हाँ। लिए हम लोग और एक ट्रेनिंग सेशन रखेंगे जहाँ पे उन्हें डेमो दिया जाएगा कि वो KYC बॉक्स मॉड्यूल यूज कैसे करते हैं लॉगिन के थ्रू। तो वो भी आपकी टीम के लिए अलग से रख लेंगे सर। हाँ राकेश जी। सर, आई एम ऑडिबल? हाँ यस Yes, सर, yes. नमस्कार राकेश जी। सर, मैं अभी गूगल फॉर्म देख रहा था, उसमें हाँ। एक जगह लिखा है कि वी हैव टू अपलोड राउंड स्टैम्प ऑफ EUIN नंबर एंड ARN नंबर। यस सर। So we have to make round stamp or a square stamp also can work. The round and square both can work. सर दोनों चलेगा सर। Nothing is like specific. We say that round stamp, वो आप square होंगे, rectangle होगा आपका stamp, जैसे आपने बना रखा है, it's okay. Okay. My stamp is including my phone number. That is okay? No, it's okay. See, normally we ask like your name, your ARN, your UI. Vikram, you tell them where we use the seal. Yeah, that's what, Basically, yeah. so good. See, सर एक्चुअली लाइक आपका जो स्टैम्प है ना, नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप लोग KYC करते हैं तो आप लोग IPV करते हैं, राइट सर? सो व्हाट वी डू द टाइम ऑफ डूइंग योर रजिस्ट्रेशन विथ MFU, हम आपका वेट सिग्नेचर और आपका स्टैम्प लेते हैं और वो हम आपके लॉगिन क्रेडेंशियल में आपका एम्बेडेड कर देते हैं। तो व्हेनेवर यू डू न्यू KYC तो आपका वहां पर आपका स्टैम्प और आपका वेट सिग्नेचर ऑलरेडी एम्बेडेड रहता है एज एन IPV। I understand. So that is how your IPV will be done from that. Thank you. And it's only one time we need to do, Rakesh ji. It's a one time एक बार आप activity. अपलोड कर दिया, then automatically कौन सा KYC कर रहा है, automatically आपका वो seal वगैरह कैप्चर हो जाएगा। Sir, why don't you share the payment link and Google Form link to our WhatsApp number so that we can take action later on? Definitely we can do. We can do, sir. No issue. Thank you, sir. Thanks, sir. So one more question. In the Google form wherein we are required to upload a signature, we are a corporate. So what do we do in that case? Whose signature is going to go in that So the case? UIN holder, because see, we say Okay. one ARN and one UIN. So whichever UIN you want to Okay. relate with this, you have to Okay. just give the signature of the UIN holder. Perfect. Thank you, sir. Yeah. Oh, any corporate or any partnership firm or trust, only UN holder. Yes, sir. Yes, sir. UIN It's holder. for the UN holder. Okay. किसी और पार्टिसिपेंट को प्लीज कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। तो मेरा ख्याल से क्या है आपका ये खत्म करने से पहले क्या करना है कि एक रिकैप जो बोलता है ना, ये नॉट सेल
ये व्हाट इज MFU बॉक्स, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या कर सकता है, एक बार इन शॉर्ट पॉइंट करके 1 2 3 4 5 6 जो 6 पॉइंट है की पॉइंट, वो एक बार बोलने से सबको अभी सब समझ पाएंगे मेरा ख्याल से। बिल्कुल। तो विद योर परमिशन मैं सर सम अप करता हूँ आज के सेशन का। तो सम अप में ये है कि MFU बॉक्स KYC हमने जो लॉन्च किया था, इट इज यूनिक इन इंडस्ट्री, जहाँ पे इन द केस ऑफ अदर ऑनलाइन KYC मॉड्यूल आधार बेस्ड और वीडियो बेस्ड KYC, MFU बॉक्स KYC जो हमने बनाया है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रिवन KYC मॉड्यूल, जहां पर एडवाइजर इन्वेस्टर के बिहाफ पे सभी चीजें कर लेगा। तो फोटो अपलोड कर देगा, पैन कार्ड अपलोड कर देगा, एड्रेस अपलोड कर देगा। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एडवाइजर इन्वेस्टर की बिहाफ पे सब वो खुद करेगा, और यहाँ पे इन्वेस्टर को सिर्फ OTP बेस अप्रूव करना है और अपने वेट सिग्नेचर को अपलोड करना है, बिकॉज द MFU बॉक्स KYC इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रिवन KYC मॉड्यूल व्हिच इज यूनिक इन इंडस्ट्री। OTP इन्वेस्टर का पास की थ्रू मोबाइल आएगा कि थ्रू मेल आएगा? OTP वाया दोनों आएगा सर। उसको अपने जो MFU से जो लिंक जाता है वो ईमेल पे जाता है, OTP तो आधार वाला OTP पे नंबर पे SMS आएगा। मतलब आधार वाला जो मोबाइल नंबर है, हाँ, वहीं पे ही जाएगा, वहीं पे OTP आएगा। हाँ, पर गौतम जी एक चीज मैं रेक्टिफाई करता हूँ, आप KYC के अंदर मोबाइल नंबर जो देना चाहो दे सकते हो। जैसे मान लो आपके 2 मोबाइल नंबर है, आप चाहते हो KYC में आपका मोबाइल नंबर 1 2 3 4 आए, बट क्योंकि आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर भी है जो आपने आधार से लिंक है, OTP इज ओनली कंज्यूम, आधार नंबर इज ओनली कंज्यूम फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस। ये 2 फैक्टर के थ्रू अप्रूव होता है, जहां पे एक OTP वाया होगा और एक वेट सिग्नेचर अपलोड करने से होगा सर। तो जहां पे आज की डेट में इंडस्ट्री में जो ऑनलाइन KYC मॉड्यूल अवेलेबल है गौतम जी, उस केस में एज ए पार्टनर आप सिर्फ लिंक इनिशिएट कर सकते हो, बाकी सारा काम इन्वेस्टर को करना पड़ता है। यहाँ पर सारा काम एडवाइजर करेगा, इन्वेस्टर सिर्फ अप्रूव करेगा। तो ये एक यूनिक चीज है। सेकंड यूनिक चीज क्या है, वी आर द ओनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल जहां पर आप NRI का KYC कर सकते हो। आज के डेट में गौतम जी किसी भी NRI का KYC करने के लिए वो NRI को इंडिया में होना चाहिए, बिकॉज वो जियो टैगिंग का इशू होता है। बट इन द केस ऑफ MFU, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रिवन KYC मॉड्यूल है जहां पे एडवाइजर अपना IP भी करता है, तो यहाँ पर जियो टैगिंग का लॉजिक नहीं रहेगा। तो अगर आपका क्लाइंट मनीष डांगरा, अज्यूम कीजिएगा आपका एक इन्वेस्टर है, वो दुनिया के कोई भी कॉर्नर में है, आप उनका अपने ऑफिस में या घर बैठे बैठे KYC कर सकते हो। ये एक यूनिक चीज है गौतम जी, ये किसी भी AMC में या कहीं और अवेलेबल नहीं है। माने RTA जैसे कैम्स केफिनटेक किसी में भी नहीं है, इसमें RTA वहां पर भी नहीं है। वहां पे भी इन्वेस्टर को उस वक्त इंडिया में होना चाहिए, बिकॉज वो आधार या वीडियो बेस होता है, जो जहाँ पे जियो टैगिंग का इशू होता है। ये एक यहाँ पर फिजिकल KYC को हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया है, तो जियो टैगिंग का लॉजिक नहीं है सर यहाँ पर। तो ये है जो अभी जो है वो तो KYC बन जाएगा, उनका आधार नहीं है, लेकिन अभी MF का जो नया कानून बन गया तो उसमें तो आधार तो मैंडेटरी हो गया। नहीं, आधार तो डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, उनको इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो तो है, लेकिन अभी तो बहुत सारा NRI है जिसका आधार नहीं है। हाँ, तो नहीं, उनका आधार क्या तो होगा? भी मैंडेट, देखो MFU के अंदर भी NRI का आप KYC कर सकते हो, शर्त है कि उसका आधार होना चाहिए। No, Gautam, to answer your question, we are still waiting for KRA to or industry to come back saying that what we need to do, because Aadhaar is not mandatory for NRIs, they don't need to link. So in those cases, ये KRA rule आने के पहले हो सकता था, but अभी with this, it's not can be done. People who don't have Aadhaar, so we are waiting for some clarity from KRA. This is the one thing I told you. That's the reason I was waiting. But अभी तक वो clarity नहीं आ रहा था। हम लोग बोला ठीक है, we'll wait both for this and for institutions also, corporates and all, तो उन लोगों को तो आधार नहीं रहता है, how to validate, है ना? So that's where we are looking at. We are still awaiting clarity and regulation. So once we come based on that, we'll make the change. एक्चुअली देखिए ना, ये सुप्रीम कोर्ट को जो वर्डिक्ट है उसमें आधार का एकदम क्लियर मेंशन है कि नॉट मैंडेटरी फॉर KYC, क्लियर मैंडेट है। तो उसके बाद हमारा ये पता नहीं कैसे, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी चेंज करना पड़ेगा इसके बाद। पता नहीं को तुम, वो कमेंट नहीं करूंगा मैं। ना वो तो वही है ना, वो तो आपका उनका जो लास्ट जो वर्डिक्ट था कि KYC में आधार मैंडेटरी नहीं है, कोई दे सकता है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन घुमा फिरा के अभी आज का जो सिचुएशन आ गया, आधार मैंडेटरी हो गया। तो ये तो कोई ना कोई जगह क्यों आधार मैंडेटरी हो गया? See, actually the regulation is
independently KRA need to verify 4 things, right? One is they need to see whether KRA is, which is CVL and all. They need to verify 4 things. One is they need to check whether the PAN and Aadhaar is linked. One. Second, they need to independently verify whether this mobile number and email ID, okay, दोनों हैं, independently करना. तीसरा address, नाम और address, okay. But unfortunately अभी क्या है, with the passport, neither passport or driving license, that government entity, other than Aadhaar, no one is giving a services to independently validate these details. It's only Aadhaar which is giving. Tomorrow, if passport office or whatever the authority is, if they started giving a service to validate the passport, then passport also can be done. Same with driving license. वो बन रहा है अभी, but फिलहाल के लिए it's only Aadhaar where a KRA can go and independently validate saying that boss ये number में ये address बराबर है क्या. So that's the only thing. I think it will change over the period of time, but as of now, it's only Aadhaar where we can validate online. Okay. Now one question is further again raised. That is PAN, according to PAN name and Aadhaar should be matched. So many people have no match, but they already linked, Aadhaar and PAN linked, but not matched in equal name. Now what will be happen? Sir, we are also waiting to see what is the impact which is going to happen, because it got only implemented yesterday, right? 29th. So we are still waiting to see how this impact is. But just merely for example, मेरा नाम गणेश राम है, ठीक है? मैं आधार और पैन लिंक कर दिया, ठीक है? बट मेरा नाम उधर गणेश स्पेस राम और स्पेस एन है, ठीक है? वो शायद वो रिजेक्ट हो सकता है, बिकॉज नाम तो डिफरेंट है. और डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज आधार और पैन लिंकेज में कोई वैलिडेशन नहीं था, नाम सही है क्या, ये क्या, सो ओनली ओटीपी आएगा, आपको करना है. अभी आपको डेट ऑफ बर्थ और नाम का मैच है, एंड वॉट एवर वी गेट फ्रॉम ITD इनकम टैक्स इज गोइंग टू बी यस और नो. सो हमको ये नहीं पता चलेगा वेदर नाम में क्या पे इश्यू था, डेट ऑफ बर्थ में इश्यू है क्या. तो अभी वी नीड टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट. अभी तक हमको कुछ पता नहीं है, but probably in few days we will come to know. Ganesh ji, now question is, which will we rectify, PAN or Aadhaar? क्योंकि एक जगह ना एक जगह तो उनका रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो कहाँ करेंगे? No, that will be depends upon how you want your name to be. अगर आपका पैन का नाम बराबर है, that what you want to have, then you need to change your name in Aadhaar. अभी आप तो जानते हैं कि अभी बेसिकली जो महाराष्ट्रियन है, जो गुजराती है, जो साउथ इंडियन है, सबका फादर का नाम मिडिल में है, जो पैन में नहीं है मैक्सिमम. ये तो प्रॉब्लम बहुत तो वेस्ट में ही होने वाला है. हमारा इसमें थोड़ा कम होगा, इधर मिडिल नेम बहुत कम है. No, वही है. So I think South India में भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, but we need to find out how it's going to come. वही है. तो अभी पैन चेंज करेंगे कि आधार चेंज करेंगे? आधार चेंज कोई वही बोल है? रहा मैं, तो आपको कौन सा नाम चाहिए तो बेसिस में करना पड़ेगा आपको. अगर हो सकता है आपको फोलियो में और कंप्लीटली डिफरेंट नेम है, पॉसिबल है. इन्हीं को कांस्टेंट तो एक का करना पड़ेगा, आइदर पैन और आधार. वही बोल रहा मैं, वो इन्वेस्टर का चॉइस है. सब किसी ना ये मेरा ना रेगुलेटर चॉइस करेंगे, इन्वेस्टर थोड़ी चॉइस होगा, ये रेगुलेटरी चॉइस करेंगे. चॉइस ही है, बट क्या नाम दिया, सर्टिफिकेट में क्या है, बैंक में क्या है, सब में तो देयर इज अ गुड चांस टू काइंड ऑफ हैव सेम नेम, कॉमन नेम और यूनिफॉर्म नेम अक्रॉस. बट देखना है. सो इट विल टेक एटलीस्ट 1 or 2 weeks टू सी व्हाट इज द इंपैक्ट, एंड आई थिंक दैट प्रोसेस आल्सो विल चेंज और इवॉल्व. दादा रेगुलेटर तो सुनने को ही तैयार नहीं है ना. प्रॉब्लम तो रेगुलेटर इज डिक्टेटिंग हिज ओन टर्म्स. हाँ, वो तो वही तो मेन बात हो गया कि अभी. अच्छा, ये गणेश जी, ये अनऑफिशियली बोल रहा है, ये ऑफिशियली मत सोचिए कि इंडिया में इतना सारा इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल, उसमें स्टॉक मार्केट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, FD मार्केट है, एवरीथिंग है. तो उसमें किसी में KYC का किसी का प्रॉब्लम नहीं है, ऑन एक्सेप्ट म्यूचुअल फंड. वो आदमी लोग सब इंडिया का ही है. अभी इंश्योरेंस वाला वो खुशी में खुशी है, बोले आ जाओ हम लोग बिजनेस ले लेंगे, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो है उसमें हो जाएगा.
तो क्या चाहता है कि म्यूचुअल फंड छोड़ के आदमी लोग दूसरा फिर बैंक में चला जाए, कि इंश्योरेंस में चला जाए, कि एफडी में, नए चिट फंड में? क्या सोच रहे हैं पता नहीं है। जितना कानून सब म्यूचुअल फंड में। मेरे ख्याल से इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बट रिटर्न रेगुलेटरी टीम क्या कर सकता है बियॉन्ड आवर कंट्रोल। आप बोल रहे मेरा मेरा खुद का प्रॉब्लम था, मेरा वो ऐसे भी 2 दिन स्टॉप हो गया पहले, ये लिंकेज में मैं खुद किया, MFU थ्रू वैलिडेट किया, तो क्या कर सकते। बट ये पैन नेम वैलिडेशन वी नीड टू वेट फॉर अनदर 1 or 2 weeks टू सी व्हाट इज द इम्पैक्ट, एंड एवरीवन इज वेटिंग टू सी व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। देखते हैं, पर मेरे ख्याल से ऐसा person in the industry, I think there will be some link, some impact should be there, but देखते हैं। अच्छा, और एक सीरियस बात है, वो उसका एक सॉल्यूशन दीजिए बस। जो जिसका समझ लीजिए उनका SWP, हमारा बहुत सारा इन्वेस्टर है जिसका SWP से उनका मंथली इनकम चलता है, उसका फैमिली चलता है। SWP हम लोग बहुत सारा पोस्टल इन्वेस्टमेंट जो MIS का, उसका ये म्यूचुअल फंड के स्विच करके उसका SWP बना दिया, तो स्टॉप हो गया। तो SWP अभी स्टॉप हो गया, तो मतलब SWP मतलब रिडम्पशन स्टॉप हो रहा है। तो रिडम्पशन, बहुत आदमी को रिडम्पशन स्टॉप हो रहा है। तो रिडम्पशन क्यों स्टॉप हो रहा है? KYC ऑन होल्ड है तो रिडम्पशन स्टॉप ही होगा। तो KYC, अच्छा KYC ऑन होल्ड उनका जिस टाइम में वो किया है उस कानून से किया है। अभी समझ लीजिए उसका नया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, तो उसका वो अपडेट भी नहीं कर पाएंगे, तो उसका पैसा वो वापस क्यों नहीं ले पाएंगे? गौतम सर, एवरी ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ टाइम स्टैम्प। तो अगर आपका ओरिजिनली SIP भी अगर आपने स्टार्ट किया होता है, आपका KYC और होल्ड पे जाता है, तो जैसे कि SIP बंद होती है वैसे SWP एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। तो करंट गाइडलाइन सेबी का ये कहता है कि आपने SIP, STP, SWP कभी भी इनिशिएट की हो, ईच ऑफ द RTA को हर इंस्टॉलमेंट के टाइम उस वक्त का करंट KYC का स्टेटस चेक करना पड़ता है। तो फिलहाल अगर वो SIP हो, लमसम परचेज, एडिशनल परचेज हो या SWP हो, हर इंस्टॉलमेंट के टाइम उस वक्त RTA को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि करंट KYC का स्टेटस चेक करें और उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले। वही बोला, SIP आप कर सकते हैं नया कानून से। SWP जो है पुराना, वो तो वन टाइम एक बार फंड इन्वेस्ट किया है उस पर, तो वो MIS का थ्रू नहीं करके SWP किया है, तो उनका तो ये दोबारा इन्वेस्टमेंट करने का कोई बात ही नहीं है। बट सर करंट ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इसलिए वही है रेगुलेटर जो कर रहा है वो कितना सही है, वही बोलना चाहता है कि आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि जिस टाइम वो जिस कानून से इन्वेस्टमेंट किया है उस हिसाब से उसके बाद वो कानून चेंज करेंगे, उसका पैसा रोक देंगे, ये कैसे होता है? उनका अभी मैच नहीं कर रहा है, तो उनका मेरा ख्याल से उनका तो पैसा वापस करना चाहिए। जब आप अपडेट नहीं कर पा रहा है तो आपका ये सिस्टम में नहीं रहना पाएगा, आपका जो पैसा है आप वापस ले लो, यही तो होना चाहिए। लेकिन कोई नहीं बोल रहा है इसके बारे में, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। बहुत सारा छोटा इन्वेस्टर है जिसका वो लोग को अभी क्या है ना, वो अपडेट नहीं हो पा रहा है। हमारा कंट्री में कितना आदमी मेल आईडी यूज करता है? अभी तो फोन आया है, जब तब सब घर में हर जगह पे फोन नहीं होगा। और एक फोन नंबर, देखिए एक फैमिली में 5 मेंबर है, 5 मेंबर का कोई आपका इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5 नंबर चाहिए। अभी आगे एक नंबर से 2-3 फोलियो चलता था, आज का दिन में वो भी नहीं चलेगा। तो एक घर में तो 5 फोन नहीं होना चाहिए। सर वो ये तो जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम है ना, कोई बोलने वाला नहीं है। नहीं सर, आपके फोरम के थ्रू डेफिनेटली जो भी चीजें हम लोग को आती है हम लोग आगे सजेस्ट हम करते हैं ये सर। हमारा चेलसानी सर MP CO को बता है, मतलब बॉस आप थोड़ा ग्राउंड लेवल में सोचिए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसका कैसे सॉर्ट आउट होगा? और आप लोग का जो सॉर्ट आउट नहीं है उसका आप होल्ड कर रखा है, आप जिसका नहीं हो रहा है उनका पैसा वापस कर दीजिए, कम से कम हम लोग तो बच जाएंगे। यस हाँ यस गौतम सर। तो ये हम लोग का जो है ना, अभी म्यूचुअल फंड चिट फंड बन जाएगा तो पता बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये पैसा वापस नहीं मिलता है। ये आप लोग ये बोला ना अनऑफिशियल, अभी बोल रहा है आप लोग का, क्योंकि ये ऑफिशियली तो नहीं बोल पा रहा है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, छोटा इन्वेस्टर के लिए कोई सोच नहीं रहा। और एक कंसर्न बात बोल रहा है जो प्रैक्टिकल हो रहा है। अभी
कोई डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है, उनका केवाईसी कोई इन्वेस्टमेंट नया करने कर जा रहा है, उसका कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो ग्रो ऐप, वो ईटी मनी एंड कोई बैंक का थ्रू इन्वेस्टमेंट जा रहा है, उनका 5 to 10 मिनट्स में उसका कंप्लीट हो रहा है। सेम चीज सेम इन्वेस्टर को कैसे हो रहा है, ये बोलने वाला कोई नहीं है। हमारा ये दिलीप दा का हमारा ये इसमें है, उनका एक क्लाइंट का 20 लाख रुपया किसी हालत से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था, तो उनका ईटी मनी थ्रू जब कर दिया 10 मिनट में हो गया। तो ये जो क्या चल रहा है हम लोग को नहीं पता रहा है। इंडिविजुअल एडवाइजर के लिए क्या अलग सोच है सबका। तो ये सर गौतम सर, दुनिया में सब चीज के लिए जवाब नहीं मिलता है, ठीक है? वो हम तो लोग ये तो रहना जो पड़ेगा। है एक्चुअली हम लोग तो ग्राउंड लेवल में सब काम करते हैं, सबका बात हर रोज ये तो सुनना पड़ता है। नहीं, कोई इशू नहीं सर। गौतम सर, व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू कि जैसे अपन ने केवाईसी का डेमो रखा है ना, इन द केस ऑफ एमएफक्यू वी आल्सो हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ अ कैन, सो वी कैन हैव अ सेपरेट डेमो कि हाउ बाय यूजिंग एमएफयू आपका ये जो काफी जो बहुत सारी चीजें हैं ना सर, ये काफी ईज हो जाएगा, बिकॉज ये सेंट्रलाइज कैन सिस्टम रहता है जो फोलियोस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो व्हाट आई विल रिक्वेस्ट यू, वी कैन हैव अ सेपरेट सेशन ऑन एमएफयू मॉड्यूल, बिकॉज बहुत सारी इंडस्ट्री में चीजें अवेलेबल नहीं है जो आप एमएफयू के थ्रू कर सकते हो। इट विल रिक्वायर अ सेशन ऑफ रफली अराउंड 1.5 hours. So we can have a session for your client, for your partners, set of esteemed distributors on a session on MFU, जहां पर आपने जो कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकली एडवाइजर अब फेस कर रहे हैं फोलियो लेवल पे, वो आपको एमएफयू में कैन लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो आज के सेशन के बाद अपन वापस से कोऑर्डिनेट करते हैं गौतम सर, टू हैव अ सेपरेट सेशन ऑन एमएफयू मॉड्यूल। हम 9-10 तारीख फिर मुंबई आ रहा है, डन सर, तो कोशिश करेंगे एक बार मुलाकात करने के लिए। डन सर, डन सर, क्योंकि हम वो एमपीसीओ का बहुत कुछ जो फोन में नहीं बात हो पाएगा, फोन में हम बहुत कुछ नहीं बोल पाता है। कोई इशू नहीं है सर। माने ये जो ऑफिशियल बात है ना, जो सामना सामनी बोल पाएंगे, जो प्रैक्टिकल बहुत सारा प्रॉब्लम है उनको बोलने के, वो अपॉइंटमेंट लेके जा रहा है। यस सर, कि ये एमपी का इनिशिएटिव होना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग का बोलने तो प्लेटफॉर्म कुछ नहीं है, एमपी तो है ना हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव। यस सर। और मीनवाइल सर मैं आपको डिटेल व्हाट्सएप पे भी शेयर करता हूँ, जैसे आपके काफी पार्टिसिपेंट ने कहा था कि व्हाट्सएप में डिटेल चाहिए, तो मैं आपको शेयर करूंगा। प्लीज आप अपने आज के पार्टिसिपेंट और एंटायर ग्रुप में शेयर कर लीजिए। ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं, बिल्कुल सर, ग्रुप में शेयर कर देते हैं। हम जानते हैं जो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जो मेन कुछ क्रिटिकल छोड़ के 80% सॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई विल टच विद यू, मैं आपसे टच में रहता हूँ सर एमएफयू का सेशन के लिए भी, और केवाईसी की डिटेल मैं आपको शेयर कर लेता हूँ सर। राइट सर, एकदम एकदम। और इसका जिसका जो इसका लेना चाहता है 999 प्लस जीएसटी 1179 होता है सर। फॉर 1 year। तो ये वो सबसे बड़ा अच्छा है कि उनके जो क्लाइंट कहते हैं कि हमारा तो ये बताए, क्लाइंट बोला अरे आप एजेंट है क्या है, हम सब कुछ करेंगे तो आपका जरूरत क्या है। नहीं, ये टोटली रिवर्स है, यहाँ पे सब कुछ एडवाइजर करेगा, उसे सिर्फ ऑथेंटिकेट करना है सर। बस और मैं आपको वीडियोस और ये सब चीजें शेयर करता हूँ सर। हाँ, तो इसमें क्लैरिटी एक मिल गया कि वो जो ओटीपी आएगा वो बेसिकली उनका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जहां आधार बेस्ड लिंक्ड है, वहीं से उनका ओटीपी इन्वेस्टर को चाहिए। बिल्कुल, एकदम क्लियर बात। वही वो जिसका पास वो है वो उनका मिल जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा, अनूप मुखर्जी जो दिल्ली का, वो लिखा है चैट बॉक्स में, एक बार पढ़िए ना क्या बोल रहा है सर। 1 मिनट। हाँ, सर इट इज एज एंड व्हेन यू सब्सक्राइब, तो ये मार्च टू अप्रैल का नहीं रहेगा। अगर आपने आज सब्सक्राइब करते हो तो ये आज से 1 साल का रहेगा। अगर आप जुलाई में सब्सक्राइब करोगे तो टिल जुलाई तक रहेगा, माने 365 डेज 365 डेज पे रहेगा। यस सर, ये सही बात है। 366 नहीं है, 365। लीप ईयर डेट नहीं चलेगा। यस, ठीक है सर। हाँ, एनी क्वेश्चन फ्रॉम फोरम? मेरे का ना बहुत सारा कुछ बोलता है, लेकिन जब प्रोग्राम बनते हैं क्वेश्चन नहीं आता है वो लोग का। नहीं, कोई आप नेक्स्ट मंथ आ ही रहे हो सर बॉम्बे, तब मिलते हैं। नहीं, ये जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड है, ये लोग मेरे को बहुत कुछ बोलता है।
अरे ये बोलना है, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे जब फोरम, जब आप लोग जब ओपन फोरम चलता है तो वहीं पे तो आप लोग का जो प्रॉब्लम है थोड़ा बोलने ना, सीखिए। शायद हो सकता है ये सोल्यूशन उन लोगों का आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं हाँ, of your आंसर तो, module. हाँ, बहुत इसलिए। सारा आंसर तो मिल गया है, वो तो बात सही है। राकेश जी Yes. थोड़ा बताइए, राकेश जी हमारा सबसे सीनियर है। अरे संदीप जी कहाँ गया? संदीप जी वो भी राकेश जी बोलिए। मैंने वो मेरे पास जो क्वेश्चन था सर मैंने पूछ लिया। हाँ आई एम नॉट ए कैमरा शाई। वो तो पता है राकेश। आई एम ऑलवेज আচ্ছা आस्क একটা क्वेश्चन है, केवाईसी रजिस्टर्ड और केवाईसी वैलिडेटेड दोनों से क्या अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केवाईसी रजिस्टर्ड एंड केवाईसी वैलिडेटेड? सर केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस कब रहता है? जैसे कई बार पहले अलाउ था कि आप केवाईसी करते हो बट आधार देना कंपलसरी नहीं था, तो उस केस में वो केवाईसी रजिस्टर्ड केसेस दिखाता है। जहां पर आपने आधार दिया है वो वैलिडेट केसेस होता है। अगर आपने केवाईसी आधार बेस करने के बाद वैलिडेट कर दिया है तो वो आधार बेस केवाईसी हो जाता है सर। रजिस्ट्री मैरिज और मैरिज रजिस्ट्री दोनों में जो अंतर होता है, पहले मैरिज उसके बाद रजिस्ट्री, ना रजिस्ट्री के बाद मैरिज। नहीं, जहाँ पे आपने आधार दिया है वहां पे वैलिडेट स्टेटस रहेगा और जहाँ पे नॉन आधार दिया था वो अप्रूव स्टेटस में रहेगा सर। वही माने ये मतलब है जो रजिस्टर्ड है लेकिन वैलिडिटी टाइम टू टाइम जिस रिक्वायरमेंट आएगा उसके हिसाब से वैलिडिटी रहेगा, उसके बाद वैलिडिटी नहीं। अभी जो वैलिडिटी है 1 साल बाद वो भी वैलिडिटी नहीं रहेगा नया रिक्वायरमेंट से। हाँ वही होगा, वो जो रेगुलेटर जब सोचेंगे इसका नया कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए तो फिर वैलिडिटी करना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, उस पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा बट करंट रूल ये है सर, वो बताता हूँ आपको। बस वही है ठीक ना। है, अभी तो थोड़ा जानकारी आ गया। another meeting, I am stepping out. Thanks. Okay, sir. नहीं, हम लोग करेंगे तो करें। नहीं हम लोग सब निकलेंगे। Yeah, हो गया, thanks, जो sir. मेन बात Yeah. है हो गया। Right, Thanks Ganesh sir. thank you. Thanks Gautam sir for giving an opportunity. Yeah, thanks sir. गणेश भाई मेरा बोले का मतलब है गौतम दा एक तो सही बात बताया कि सुप्रीम कोर्ट बता दिया जो इज नॉट मैंडेटरी केवाईसी फॉर आधार। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स वायलेट करता है। ये हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है ये आपको आप साइंस समझता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ नहीं कर पाएंगे अभी चल रहा है। हम सब लोग गौतम दा हम सब लोग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कुछ बताना होगा, डिपुटेशन देना होगा। अरे आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो बताया था ना कि बैंक का केवाईसी सिंपलिसिटी होना, बैंक केवाईसी इज एनफ। वो क्या हुआ? वो तो पहले ही उसका वायलेट हो गया ना। वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में जो नजर आना चाहिए जे सेबी कैसे काम करता है, उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हड़स करता है, कैसा हड़स करता है वो शुद्ध आज नहीं माने पिछले कई साल में म्यूचुअल फंड को डेवलप करने के बजाय म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देना बजाय कंटिन्यूअस हार्ट करता है। गोरादा, आप एनी ग्रुप में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का थोड़ा इधर उधर बात लिख दीजिए ना, आपका तुरंत आपका पास फोन आ जाएगा। देखिए उनका पास गौतम भाई আমার কি আওয়াজটা हेलो, হ্যাঁ আমার আওয়াজ আসছে কি? यस क्लियर। ओके ग्रेट। विक्रम जी আছে কি? विक्रम जी हैं क्या? विक्रम जी, मनीष जी तो है, मनीष डंगा है तो। मनीष जी है? हाँ। कैन यू रिस्पोंड टू माय वन ऑफ द क्वेश्चन? मनीष जी चलेगा। विक्रम या मनीष जी हैं तो না বেরিয়ে গেছে মনে হচ্ছে সব। হ্যাঁ চলো ওনাকে ডাইরেক্ট করে দেব। গ্রেট। অনুপদা মানে আমি কিন্তু সমস্ত পয়েন্ট তুলে দিয়েছি, সব জানিয়ে দিয়েছি। না ওটা দেখছিলাম তো আমি, ওটা পয়েন্টগুলো ভ্যালিড। আমি আসলে হঠাৎ করে কি হলো কি আমি এমএফইউ আমার নেওয়া আছে এদের এমএফইউ বক্সটা। আমি এখনই সানডেতে আমি গত সানডেতে করতে চেষ্টা করছিলাম কেওয়াইসি, ওদের সিস্টেম এরর দেখাচ্ছিল। পরে আমি ক্যাম্পসে করলাম তো ক্যাম্পসে কিছুটা ব্যাপারটা আটকে আছে।
মানে ওটা ওই ক্লায়েন্ট যে ভ্যালিডেট করবে নিজের মোবাইল নাম্বার ইমেল ওইখানে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। তো ওইখানে ওই মেন যেটা বললাম যে ওর দেখুন ক্লায়েন্টের যে আধার আছে সেই লিংক আছে, সব আধারের চেক সাথে করা। আধারের কোন ফোন হ্যাঁ নাম্বার আছে ক্লিয়ার, ওগুলো সব চেক করে নিয়েছি। ওইটাকেই চেক করা, ওটাই মেন আছে। ওটা চেক করে নিয়েছি। আই ডোন্ট নো ক্যাম্পস কি করছে, ওটিপি যাচ্ছে তো, যেহেতু ওটিপি যাচ্ছে তার মানে ওটা ঠিক আছে। ওটিপি যাচ্ছে, কিসে যাচ্ছে? দুটো ওটিপি যাবে, একটা হচ্ছে মেলে, একটা ফোনে। হ্যাঁ যাচ্ছে, দুটোই ফোনেরটা হলো, এবার মেলেরটা যদি না পাই তাহলে হবে না। মেলেরটাও যাচ্ছে, কিন্তু হচ্ছেটা কি যখন ওখানে ফিল করছে ওই যে লাস্ট পয়েন্টে ক্যাম্পসে যখন করি আমি, তো ওইখানে যখন ভ্যালিডেট করার ব্যাপারটা আসছে, ক্লায়েন্ট নিজে গিয়ে করছে, ওইখানে ওটা এটা আমার মনে হয় এমএফইউ তে হয়ে যাওয়া উচিত। আপনি নালে এমএফইউ যে মনীষ ডাংরার নাম্বার আছে তো? মনীষজি মনীষ চেনে আমাকে ভালো করে। ব্যাস তার মনীষ দার সাথে পার্সোনালি আমি এসেছিল দিল্লিতে, দেখা হয়েছিল, কথা বলে দিন, কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ এদের একটা এমএফইউ বক্স করেও আছে। হ্যাঁ ওই এমএফইউ বক্স নিয়েই তো ডিসকাশনটা হলো। না এটা কেওয়াইসি, এমএফইউ বক্স একটা আলাদা হচ্ছে যেখানে এরা ওই আপনাকে যেটা ক্লায়েন্ট সার্ভিস প্রোভাইডার। আরে সেটাই তো বললো, এমএফইউ বক্সটা আপনি যদি নেন 999 প্লাস জিএসটি দিয়ে 1177 টাকা দিয়ে, তাহলেই আপনি ক্লায়েন্টের বিহেভিয়ার সব করে নিতে পারবেন। শুধু ক্লায়েন্টের কাছ থেকে দুটো ওটিপি চাই। গৌতম দা দুটো জিনিস আলাদা। না ওটা সফটওয়্যার যেটা বলছেন সেটা 25,000 টাকা। হ্যাঁ ওটা আলাদা, সেটা এমএফইউ বক্স সফটওয়্যার বলুন। হ্যাঁ আর এটাও বক্স, এটা হচ্ছে কেওয়াইসির জন্য, এটা খালি কেওয়াইসি। ইয়েস এক্স্যাক্টলি। আর এমএফইউ বক্সটা এতটাই ভালো আছে, ওই সফটওয়্যারটা অন্য কোম্পানি প্রায় 1 লাখ টাকা কস্ট আছে। আচ্ছা এটা এতটা আছে, এতটাই ভালো। ওকে, কিন্তু ওটা নিয়ে একটা সেশন হবে। হ্যাঁ ওটা করে দেবো। এখন তো সত্যি কথা বলছি, এখন সবার এই কেওয়াইসি নিয়ে মানে মাথার গায়ে কুকুর পাগল বলে না, সেটা চলছে। সেই জন্য আমি আর অন্য কিছু ইস্যুটাকে নিচ্ছি না, শুধু কেওয়াইসিটাকে আগে রিজলভ করা। আমি গত প্রায় 5-6 মাস ধরে এমএফইউ ইউজ করছি। আগে এমএফইউ তো একটা, ওটা যেহেতু ওটা ফ্রিতে করছেন, ফ্রি জিনিসটা আছে, কিন্তু যখন আপনি এটা নিচ্ছেন, এটা নিলে তো আপনার অনেক সহজ হয়ে যাবে। যখন লঞ্চ করেছিল সেপ্টেম্বরে তখনই নিয়ে নিয়েছিলাম। তো এটা অনেক কিছু সহজ হবে। ওটা কিন্তু আমি একটা জিনিস দেখলাম সকলের জন্য যারা আছে, আমি বিএসসিও ইউজ করতাম, বিএসসি থেকে এমএফইউ অনেক কনভিনিয়েন্ট, অনেক ইন্টারফেস, অনেক কিছু ইন্টারফেস অনেক ভালো। আমি বললাম না, আমি তো বোম্বে এর আগের বার গিয়ে এমএফইউ অফিসে দেখুন, অ্যাকচুয়ালি কি হয়, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই কাজ করে কিন্তু বেসিক জায়গাগুলো কেউ দেখতে চায় না বা শুনতে চায় না, বুঝতে চায় না, সেখান থেকে জিনিসটা সলভ হবে। আর আপনি এদেরকে প্রবলেমগুলো দিলে এরা তখন এটা রিজলভ করার চেষ্টা করে। আমাদের এখানে কেউ রিয়েলি প্রবলেমগুলো হচ্ছে ঠিক মতো দিতে পারে না। আপনার যা প্রবলেম হচ্ছে সেটা তো বলতে হবে, মানে আপনার যন্ত্রণাটা যদি আপনি না বলতে পারেন তাহলে ডাক্তার ওষুধটা দেবে কোথায়? আপনি ওরা ভালো রেজ করেছে, ওটা ভ্যালিড পয়েন্ট। আমি অনেকজনকে বলেও থাকি ওই যে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের ব্যাপারটা। না আমি তো অনেক কিছু ফেস করছি। আজকে ডেটে আধার has become a major window for frauds। সেটাই তো আমি বলছি, আমার প্রেসিডেন্টের কসবা থানা থেকে ফোন এসে গেছে যে কে বলেছে আপনাকে এটা করতে। দেখুন আরেকটা ব্যাপার বলি, আমাদের তো তবু মানে মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে তো তবু মাস্ক আধার ব্যবহার হয়। আপনি ব্যাংকে এখানে ওখানে কেওয়াইসি করতে যান, আরে কোথাও কিচ্ছু হচ্ছে না, মাস্ক আধার নেবে না, এমনি আধারই তো নিচ্ছে ওটা। না তার থেকে বড় কথা হচ্ছে যে ব্যাংক যদি কেওয়াইসিটা ঠিকঠাক মতন করে, তাহলে আমাদের এখানে দেওয়ার দরকার কি অন্যান্য জায়গায়? আমাদের টাকাটা তো ব্যাংক থেকেই যাচ্ছে আর ব্যাংকেই টাকাটা ঢুকছে। ব্যাংকে যদি কেওয়াইসি প্রবলেম থাকে তো টাকাটা বেরোবেও না, টাকা ঢুকবেও না। আমি বুঝতে পারি না আমাদের এই এত ইস্যুগুলো নিয়ে দেশের এত লোক রয়েছে, এত ইনভেস্টর আছে, কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই, কেউ কিছু এই ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স এবং এদের কাছে পৌঁছায় জিনিসটা, কেউ নেই বলবার। কালকে একটা জিনিস আমি দেখলাম। হ্যালো একটা কথা বলছি, এটা কাকে লিখতে হবে বলুন তো? আপনি খালি বলুন কোথায় কোথায় লিখতে হবে। কেন? মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সকে দিতে হবে, মেনলি মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্সকে। আর সুপ্রিম কোর্টকে একটা কপি দেওয়া দরকার এখন, যে আপনি যে আধারে এটা ম্যান্ডেট দিলেন সেটা এখানে তো মানছে না, যেখানে তো বলছে যে আধার ছাড়া হবে না, ভ্যালিডেট নয় কেওয়াইসি।
পাসপোর্টও মানছে না। দাদা সুপ্রিম কোর্টে যে আবেদনটা করবে ওটা কোথায় কিভাবে করবে আপনি সেটাকে দিন, তারপর যেটা করার আমি আগে ইনভেস্টরকে দিয়ে করাতে পারি। সুপ্রিম কোর্টে যেখানে ওদের প্রত্যেকেরই গ্রিভেন্স সেল আছে, সেখানে ওই টুইট করা বা এগুলো দেওয়া। না, এটা পিআইএল করলেই তো হয়। পিআইএল করতে গেলে তো লয়ারকে দিয়ে করাতে হবে। হ্যাঁ, লয়ারকে দিয়ে করানোই তো ভালো। লয়ারকে দিয়ে আমাদের যে আমি কথা বলেছি, আমাদের যে সুপ্রিম কোর্টের লয়ার আছে তীর্থঙ্কর, আপনি সুব্রত দা কথা বলে নিন, ও করে দেবে। ওকে বলেছি এই নিয়ে বিষয় নিয়ে সমস্ত পয়েন্টগুলো নোট ডাউন করুন। হ্যাঁ, আর সেবিকে করতে কি আমাদের রিজিওনাল অফিসে করতে হবে? না রিজিওনালে কিচ্ছু নেই, রিজিওনাল কোনো ক্ষমতা নেই, কথা বলেছি। ও বোম্বেতে, সবকিছু বোম্বে। কেওয়াইসি ব্যাপারে আমার একটা প্রশ্ন আছে গো, বলবো এখন আর বলে কি হবে, কাকে বলবেন? প্রশ্নগুলো তো যাদের করার দরকার তারা সবাই কখন চলে গেছে বাড়ি। না না ঠিক আছে, আমাদের মধ্যে আলোচনাটা হোক। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা গৌতম দা, আমি এবারে লিভ করছি। হ্যাঁ, আমরাও বেরিয়ে যাচ্ছি। তো এখানে মেনলি আমরা যেটা পিআইএল বললেন না, তো আমরা ভাবছি যে একজন এটা তো ইনভেস্টারই করতে পারে, আমরা করতে পারি না, ইনভেস্টরকে দিয়ে করাতে হবে। একটা জিনিস দেখলাম কালকে রাত্রিবেলা কি আছে কে কথা বলি ব্যাপার। বলুন। বলছি চার্জেবল সফটওয়্যারের ব্যাপারটা কি? আমাকে আমার অর্ণব বললো যে এটা কি চার্জেবল সফটওয়্যারের কথা হয়েছে আজকে, এটা কি? এটা 999 প্লাস জিএসটি, 1100 কত টাকা দিয়ে নিলে পরে আপনি ক্লায়েন্টের হয়ে আপনি কেওয়াইসিটা বানাতে পারবেন। ক্লায়েন্টের কাছ থেকে শুধু 2টো ওটিপি নিতে হবে, তাহলেই হবে। বাদ বাকি সমস্তটা আপনি ফিল আপ করতে পারবেন। না আমরা তো এমনিতেই তো তুমি করছো, এমনিতেই তো করছি, সেখানে তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আমি বলছি এমনিতেই তো যখন পার্টির কাছ থেকে ওটিপি নিয়ে করছি, কিন্তু সেখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে কি আমাদেরকে আগে ফিজিক্যালি ফর্ম এএমসি তে পাঠাতে হচ্ছে, তারপরে ওটিপি। এগুলোর ওই ডিটেলসটা ওদের যে ইউটিউব আছে, ইউটিউবটা দেখে নেবেন, বুঝতে পারবেন। ইউটিউবের ডিটেলস দেয়া আছে, তাহলে পরে বুঝতে পারবেন। আপনার ও দেখেনি প্রথম থেকে প্রোগ্রামটা? প্রোগ্রামটা দেখেনি? দেখলে তো সব আছে, জানতে পেরেছে যে কি আছে। এমএফইউ বক্সের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে যেটা কারো নেই। এটা কি অ্যানুয়াল চার্জেস না? অ্যানুয়াল চার্জেস, অ্যানুয়াল চার্জ। এমএফইউ তে যেটা আছে, যেটা আপনি ক্যান স্কেপিনটা কোথাও দিয়ে করতে পারবেন না, শুধু এমএফইউ দিয়েই হবে এটা। আচ্ছা আচ্ছা। সেইগুলো, সেটা তো খুব ভালো জিনিস আছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো যে কেওয়াইসিটা আপনার ভ্যালিড হচ্ছে না, সেটাকে রিকেওয়াইসি করতে পারেন। রিকেওয়াইসি করে দিলেই তো ভ্যালিড হয়ে যাবে। দিলবদি যারা বলতে চাইছিল এটা কি অ্যানুয়াল এভরি ইয়ার দিতে হবে? হ্যাঁ, এটা অ্যানুয়াল 999 প্লাস জিএসটি। আচ্ছা, অ্যানুয়াল বলতে কি 365 দিন, মানে যেদিন থেকে নেবেন সেখান থেকে 365 দিন, মোবাইল রিচার্জের মতো। যেদিনকে চার্জ করবেন সেদিন থেকে 365 দিন। তাহলে আমাদেরকে আর পেপারে সাবমিট করতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না, ভিডিও কল করতে হবে না, বহু কিছু। এনআরআই এর, বিশেষ করে এনআরআই তো আপনি করতে পারবেন না। আমার একটা প্রশ্ন ছিল, শোনো না, তুমি তো জানবে, আমি তুমি তো ছিলে সারাক্ষণ এটাই। এইবার হচ্ছে আমাদের এখানেতে অ্যাড্রেস প্রুফ ব্যাংকের স্টেটমেন্ট চলে না ফর রেসিডেন্টের জন্য, তাই তো? কিন্তু এনআরআই এর অ্যাড্রেস প্রুফ তো সবসময় ব্যাংক দিয়েই হচ্ছে। ওটাও কি এতদিন তো আধার ছাড়া হচ্ছিল, এখন আধার ছাড়া কেওয়াইসি হলে হবে না। তো ইয়ে করেছে, তাহলে কি মানে এনআরআই এর তাহলে অ্যাড্রেস প্রুফ কি হলো? যে গণেশ মনীষ ডাঙ্গা আসছে। তুমি লোকাল অ্যাড্রেস প্রুফের কথা বলছি না, ফরেন অ্যাড্রেস প্রুফ। কেওয়াইসিটা ফরেন অ্যাড্রেস প্রুফ ওখানে যেটা আছে, একবার ওটা ঢুকে দেখে নিন, পেয়ে যাবেন ডিটেলস, যা যা দিতে বলবে। এমএফইউ আধার দিতেই হবে, যাই অ্যাড্রেস প্রুফ দিন আধার দিতেই হবে। না শোনো না, আধার তো দেবেই, কিন্তু ফরেন অ্যাড্রেস প্রুফ একটা দিতে হয়। আগে ফরেন অ্যাড্রেস প্রুফটা আমরা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে দিতাম।
এখন যেটা আছে সেটা আরেকবার দরকার হলে আমরা আরেকবার একদিন সেশন করে নেব, এটা হয়ে যাবে। আর প্রত্যেককে বলছি যে লোকে পার্টিসিপেট করে না, লোকে তার প্রবলেমের কথা বলে না। আপনি যে কথাগুলো বলছেন এইটাই যদি তখন এই মিটিং এর মধ্যে বলতেন, সলভ হয়ে যেত। হ্যাঁ, আপনারা কি করতে আছেন আমি বুঝেই পাই না। সব মানে ওই এগুলো আপনারা তো পুলিশের ভূমিকা, ডাকাতি করে চলে যায়, তারপরে পুলিশ আসে, এরকম। মানে এটা যে এত বারবার বললাম যে প্রোগ্রামটাতে আমি ফুল এমএফইউর ফুল টিম ছিল, 5 জন ছিল। আজকে আমার না পায়ে ব্যথা খুব হয়েছিল, যে কদিন হাঁটাহাঁটিতে ডাক্তারের কাছে গেছিলাম। প্রায়োরিটি নেই। আরে শুনুন, আমি তো দেখলাম আমাদের এই প্রায় 300 জন মতো মেম্বার, 250-300 জন মেম্বার, আর 50 জন হলো না এখানে। তার মানে কি কারো কোনো প্রবলেমই নেই, শুধু মুখে বলে প্রবলেম, কারো 50 জন কি বেশিরভাগই তো বাইরের ছিল, বাইরের লোক রয়েছে। তার তার মানে কি আমাদের ডিস্ট্রিবিউটররা আমাদের মেম্বারদের কোনো প্রয়োজনই নেই এসব, তারা বিন্দাস আছে, শুধু বলে যে আমার প্রবলেম। তাই এদের ব্যবসা থাকবে আপনার কি মনে হয়? যেটা করছে রেগুলেটর ও জানে বোঝে, এরা সব বসে বসে খাওয়া লোক, বসে খাওয়াটা উঠে যাবে, সব বসে খাওয়া। দিলীপ দা যে আমি যেটা শুনলাম বুঝতে পারলাম যে এনআরআইদের আধার লাগবে না, কারণ তাদের তো আধার নেই, ওই ব্যাংক অ্যাড্রেস প্রুফ হয়ে যাবে, যেটা আমি শুনলাম বুঝলাম, ব্যাংক অ্যাড্রেস প্রুফ হয়ে যাবে। উল্টো বলে দিল একদম পুরোপুরি, আধার ছাড়া হবেই না। কি হবে এনআরআই কি করে আধার পাবে? এনআরআই কোথায় আধার পাবে? কোথায় পাবে জানে না। আমাদের ভারতবর্ষে এখন আধার ছাড়া কেওয়াইসি হবে না, ইনভেস্টমেন্ট হবে না এখানে। এটা কিছু আছে, কিন্তু ফরেন অ্যাড্রেস বুক কি হবে সেটাই তো বড় কথা। ফরেন অ্যাড্রেসটা বলে দেবে এখনই, চিন্তার কিছু নেই। ওর মধ্যে আছে, ওদের মধ্যে যে ফরেন অ্যাড্রেস নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, এখানে এখানকার মাথা ব্যথাটা হচ্ছে আধার নিয়ে। রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ানদের আধার কম্পালসারি, কিন্তু এনআরআই দের আধার কম্পালসারি না, আমি যেটা শুনেছি বিভিন্ন। আরে আপনি শুনেছেন ওসব পুরোনো কথা শুনে লাভ আছে, রিসেন্ট কথা না জানলে। ফরেন অ্যাড্রেস প্রুফের জন্য হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে মুশকিল হচ্ছে। আমরা ব্যাংক দিয়ে করেছিলাম, সব আটকে গেছে। সেটা গেছে, তার জন্য কি বলেছে আপনাকে, কি বলেছে? ঠিক ক্লিয়ার করতে কেউ বলছে না ফরেন অ্যাড্রেস প্রুফে যদি ইংলিশে লেখা থাকে হয়ে যাবে, কেউ বলছে জেনে বলবো। কালকে আমি অভিকের সঙ্গে কথা হলো, তারপরে এইচডিএফসির অনেকের সঙ্গে কথা হলো, আমাদের সব অনেকগুলো সব আটকে আছে ওই কারণে। কি বলেছে? বলছে আপনি ফোলিও দিয়ে দিন বা এ করুন, বাবার অ্যাকসেপ্ট কেওয়াইসি দিন। এখন মানে ডিটেলসটা ঠিক বলতে পারছে না। অনেকে বলছে ফরেন অ্যাড্রেস প্রুফ, अब तुम्हारा की बोले ये मनीष जी, एनआरआई का एक तो आधार तो हमारा इंडियन का है, फॉरेन एड्रेस के लिए क्या प्रूफ क्या चाहिए? फॉरेन एड्रेस में एज पर केवाईसी हमने क्या ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिया है, उसका लाइट बिल रहेगा या जो रहेगा ना, वो जो एज पर सीबीएल है वो ड्रॉप डाउन के अंदर मिलेगा उनको सर। वो एक बार देखिए ना, क्या क्या फॉरेन जो एनआरआई है उनका फॉरेन। मैं वो टीम को मैं पूछ के आपको व्हाट्सएप करता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए जो उसका क्या क्या चाहिए, क्योंकि यहीं पे जो हमारा जो दिलीप दा है उनका कुछ इन्वेस्टर का एनआरआई का वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है ना, फोलियो है उसमें होता है, नया फोलियो में होता नहीं। ठीक है, পাঠিয়ে দিচ্ছে আমাকে কি কি ইলেকট্রিক বিল আর কি বললো, কতগুলো জিনিস আছে সেগুলো দিয়ে হয়ে যাবে। আপনি না শুধু প্রবলেমটা জানেন, সলভ করবার লোকই জানেন না, আর লোককে ধরালেও লোকগুলোকে কথা বলেন না। সলিউশন চাই, প্রবলেম থাকবে, সলিউশন কোথায় সেটা বের করতে হবে। আরে প্রবলেম আমারই দোষ তো, আমি তো এখন এলাম, প্রবলেমটা বললে তাহলে তো আপনি আসলেন, আপনি খেলা শেষ হয়ে সবাই খেলোয়াড়রা সবার যে যার হোটেলে চলে গেল, তখন আপনি মাঠে এসেছেন, তা কি খেলা দেখবেন? মানে খেলা তো তোমরা ভিডিও দেখছিলে অন্য, মানে এগুলো সত্যি কথা বলছি, আপনাদের কোথায় সিরিয়াস ইস্যু বলুন তো? আজ প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি কোথায়? প্রেসিডেন্ট বাইরে আছে, দার্জিলিং, হিমাচল। আর সেক্রেটারি তো একবার ঢুকলো দেখলাম, তারপর আবার কোথায় গেল জানি না। কালকে আমি বেশ কয়েকটা ভ্যালিডেশন কিন্তু মানে সিভিএল কেয়ারে দিয়ে করলাম, দারুণ হয়ে গেল, টপাটপ, মানে কোনো অসুবিধে নেই।
কোনটা দিয়ে করেছো? শুনুন, আপনি ভ্যালিডেশন গুলো আমি এখানকার আমি সিবিএল শুনুন, কেয়ারে দেবাশিসদা শুনুন, সবাই গ্রো অ্যাপটা ডাউনলোড করুন। গ্রো অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিজেরা যে কোনো একটা ইনভেস্টমেন্ট করলে বুঝতে পারবেন যে গ্রো অ্যাপে কিভাবে হয়ে যাচ্ছে, মানে জলের মতো হয়ে যাচ্ছে ওখানে। ইটি মানি তো আমি করেছি আমার নিজের ইনভেস্টমেন্ট, সব কিছু হয়ে গেল। হ্যাঁ, ইটি মানি। সমস্যা হচ্ছে এনডিএমএল কেয়ারেতে। গ্রো অ্যাপ দিয়েই হয়ে যাবে। সেই জন্য যখন একটা জিনিস এখন সোজা যেমন বললো, যদি ইনভেস্টর পায় না ওই গ্রো অ্যাপেই চলে যাবে, আমাদের কাছে আর আসবে না। সেটাই তো, এবার এরম যদি সার্ভিস হয় তা আমাদের সেইভাবে নিজেদের তৈরি করতে হবে গ্রো অ্যাপের মতো কিছু একটা তো করতে হবে। এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে গ্রো অ্যাপে 5 মিনিটের মধ্যে হয়ে যায়, কোনো অসুবিধা নেই। গ্রো অ্যাপ কেন, ইটি মানি তো হয়ে যায়। আমার নিজে করেছি, একটা টেস্ট করে দেখলাম, সমস্ত কেওয়াইসি হয়ে গেল, মডিফাই হয়ে গেল একসঙ্গে 1 মিনিটের মধ্যে। ঠিক আছে, একটা জিনিস হচ্ছে, একটা দিলীপ দা একটা জিনিস বলি, আমাদের যে এই যে লয়ার আছে না তীর্থঙ্কর, ওকে আপনার যত ইনভেস্টারের যে আমি যে ইস্যুটা তুলেছি 2-3টে ইস্যু দেখুন। ফার্স্ট হচ্ছে যেগুলো পুরনো ইনভেস্টমেন্ট আছে তাদের কোনো আপডেট করবার মতো পরিস্থিতি নেই, তাহলে তাদের টাকাটা রিডামশন কেন হবে না? সেটাই হচ্ছে কথা, রিডামশন কেন হবে না? আর এই যে এসডব্লিউপি তো বেশিরভাগ আমরা কি করেছি, এসডব্লিউপি করেছি এমআইএস এর একটা সাবস্টিটিউট জিনিস হিসেবে, এসডব্লিউপি হিসেবে একটা লোকের একটা রিটায়ার্ড লোকের টাকা সেখানে রেখে তার মান্থলি ইনকাম হিসেবে এটাকে ব্যবহার করছে, সেখানে এসডব্লিউপিটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে তার রিডামশন সেটা কি করে স্টপ করতে পারে? যদি তাকে একান্তই স্টপ করতে হয় তাহলে পুরো টাকা তাকে ফেরত দিয়ে দিক একবারে। দিয়ে দাও তাকে, না ব্যাপার হচ্ছে তাকে 3 দিনের মধ্যে বা 1 মাস অপশন দেবে যে তুমি যদি এর মধ্যে কিছু না করো আর টাকা পাবে না, ব্যাস কি। হ্যাঁ, তো এখানে আমরা এই ফান্ডামেন্টাল রাইট, এখানে ফান্ডামেন্টাল রাইট চলে যাচ্ছে। এটা ওই লয়ার শুনুন ও পিএলআই করবে একটা পাবলিক লিটিগেশন, তো ওকে তো আপনাকে এই তথ্যগুলো দিতে হবে, দিলে ও করে দেবে। তো আপনি এগুলো সবাই মিলে এটা দিয়ে করুন, নালে কিন্তু আবার কিন্তু লোকে আবার বলবে যে এরা চিট ফান্ডে কাজ করে, এরা চিট ফান্ডে টাকা মেরে দিয়েছে, যখন লোকে রিডামশন পাবে না। এইরকম এত ঝামেলার জন্য বহুত লোক সকালে বিকেলে আমার কাছে আমার সাফারার হচ্ছি, বলে আর মিউচুয়াল ফান্ডে করে দরকার নেই, তুমি সব টাকা তুলে দাও, আমি অন্য জায়গায় করবো, আর মিউচুয়াল ফান্ডে করবো। আবার এফডির কাজ করুন আর কি। আমাদের জন্য হচ্ছে, আমাদের ছোট যারা নতুন এসেছে তাদের কোনো ব্যাপার নেই, তারা তো 1 সেকেন্ডে করে দিচ্ছে সব। না দিলীপ দা একটা গ্রো আইকা অ্যাপ তৈরি করুন, তাহলে সব হয়ে যাবে এখন এইটা দিয়ে। ও আইক্যাপ করতে হলে তো ওখানে এক্সট্রা ইনকাম কি হবে? গ্রো আইপে তো কোনো রেগুলার স্কিম হয় না, সব তোমার সব ডাইরেক্ট স্কিম হয়। তো আমাদের রেভিনিউটা কিভাবে জেনারেট হবে বলো? সেটা আলোচনা করতে হবে বসে। আজকে এই যে আমার অফিসের পাশে না 4-5টা সমস্ত সব অর্গানাইজেশন আছে, ওদের সব গ্রো অ্যাপ।